Okay, so now the question is, if Amrit has already a website, and then how can we edit it if we want? So if you have a website, first of all, you have to make sure that what you want to edit. In website, I would like to show that if you want to have a website, there are few component of the website. Website is not a standalone thing. It's, you can say that you have to assemble, if it is a machine, you have to assemble it. So what are the assembling component? So if you want to change the look and feel of your website, so it's the most important thing. I'm just writing it in the in your chat window. So here I'm writing, if you want to edit a website, so what you want to edit? If you want to master a website thing, like if you want to control everything in your website, what skills you should have? A website, if you want to manage website, manage website. So when you are asking you want to edit, I'm assuming that you want to manage your website fully at your end. So first, most basic skill required is HTML. So whatever look and feel, let's suppose this is the website, whatever look and feel you are seeing here, whatever look and feel you are seeing here, जो कुछ भी आप यहाँ पे देख रहे हो, that is your due to the HTML. So if you want to change the look and feel of your website, the most basic skill is HTML. Independently you can create an entire web page in HTML. अगर आपको HTML पता है, तो आप पूरी की पूरी वेबसाइट HTML में बना सकते हो. Right. So the most important skill is HTML, which you have to master. Second thing, in backend, let's suppose backend, when you are clicking here, one is this is one of the, HTML is a hypertext transfer protocol. Manisha has joined us. Good afternoon, Manisha. Very good afternoon. So here we are talking about website, and if you want to be an one man RV to manage your website, आप अपनी वेबसाइट को पूरी तरीके से आप ही मैनेज करना चाहते हो, यू डोंट वांट एनीवन, लाइक एवरीथिंग यू शुड बी एबल टू मैनेज, इवन इट इन द केस ऑफ अर्जेंसी, इफ यू वांट कि टेक्स्ट भी चेंज कर दे, बटन्स भी चेंज कर दे, फंक्शनैलिटी भी चेंज कर दे, मेन्यूज भी चेंज कर दे, बैकएंड भी चेंज कर दे, डेटाबेस भी मैनेज कर ले. So there are so many component of the websites. The most basic component is whatever look and feel, whatever look and feel you are seeing, this is the part of HTML, right? So HTML the basic thing, but before finally creating the HTML, people create the mock of the website. जैसे जनरली वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले लोग क्या करते हैं, मॉक क्रिएट करते हैं, मतलब एक डमी डिजाइन क्रिएट करते हैं. सो दैट इज द स्टैटिक डिजाइन, दैट इज द, वहां पे क्लिकेबल लिंक्स काम नहीं करता है, वो लिंक्स काम नहीं करते, जस्ट केवल इमेजेस इमेजेस, एक लुक एंड फील, एक स्ट्रक्चर, एक लाइक मोटा मोटा आइडिया होता है कि कहाँ पे मेन्यू होंगे, कहाँ लोगो होगा. सो दैट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. इज फॉर दैट यू रिक्वायर अ ग्राफिक. So HTML, you required a graphic graphic design skill. अगर if you I'm saying HTML skill, so this is the part of web design skill. It's a part of web design skill. It's a web design skill. Graphic design skill, all kind of static graphic, all kind of static graphic will be termed as graphic design. So all the static images, all which does not have any clickable links, so that is the part of graphics, right? Then you required backend functioning, like when you are clicking here and some form is opening, people have to fill up that form, the data will come to the database. So when you are creating the account, the website is asking for the your email ID and user ID. आप ये सारा डेटा दोगे, डेटाबेस में जाएगा, when आप लॉग इन करोगे तो वो आपके स्टोर डेटा से मैच करेगा कि यूजर आईडी, पासवर्ड, ईमेल आईडी मैच हो रहा है या नहीं, देन आपको लॉग इन अलाउ होगा. So this is the backend functionality, right? So for that you required a web programming language. For that you required a web programming language. Programming right. Web programming language means you can have a
HTML में भी that is the most advanced language. HTML5 बहुत हद तक HTML5 will take care of your web programming language, right? But apart from that, the major web programming language, you if your website in PHP, अगर आपकी वेबसाइट PHP में है तो you can edit that backend in the PHP. If your website is in Java, तो उस केस में जावा में आपको आप जावा का स्किल्स होना चाहिए. .NET, if your website is in .NET. So in which web programming language is in आपकी वेबसाइट पाइथन में है. आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा डिमांड में जो है वो पाइथन है. Python, all these are the web programming language. So if you want to take the control of the functionality of your website, अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को आप एडिट करना चाहते हो, फॉर दैट यू रिक्वायर्ड अ PHP, जावा, .NET, पाइथन स्किल्स. इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी वेबसाइट किस में बनी हुई है. अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है, सो दैट entire WordPress is in PHP. So in that case, if you know the PHP, आप वर्डप्रेस की वेबसाइट को किसी भी हद तक एडिट कर सकते हैं, राइट? किसी भी हद तक आप उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं. बट अगर .NET में बनी हुई है तो .NEट में का स्किल्स आना चाहिए. अगर पाइथन में बनी है तो पाइथन में का आना चाहिए. अगर रूबी ऑन रेल में बनी है, ROR में बनी है, तो उसका स्किल आना चाहिए, राइट? सो दिस इज वन स्किल रिक्वायर्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके सर्वर में कोई दिक्कत हो जाए, मतलब जहां पे आपने अपनी वेबसाइट का डेटा सर्वर सेव किया हुआ है, तो उसके लिए सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का स्किल आपके पास होना चाहिए. सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का स्किल होना चाहिए, राइट? आप इफ यू वांट टू ऐड कंटेंट, then you must have a web copywriting. Whatever content you are seeing on the website, आप किसी भी वेबसाइट में जाते हो और वहां पे जो कुछ भी कंटेंट देख रहे हो, that is the web copywriting. So how you can convince your user, how you are communicating with your user, how you are giving the information to the user so that they are taking the desired action. So this is called web content writing, right? So web page के लिए जो आप content लिख रहे हो, that is your web content writing, right? So it's a web content writing. If you want to add video in your website, so you required a video. You required a video में भी तीन चीजें हो सकती हैं. You can have a pre-production skill, production, that is video production, video shooting, and post production, that is editing and marketing. Post production skill आपके पास होना चाहिए. So these are the skills you required. Basically, if you want to manage your entire website, web design skills also include your CSS and JavaScript. CSS is cascading style sheet. Cascading style sheet. So it's a cascading style sheet that is a part of web design skill. Web design skill. Apart from that, if you want to take further control, you must have the skill of JavaScript, JS. That is called JavaScript, right? So again, this is part of web design skill. Web designer, whoever is working as a web designer, that we expect that kind of things from web designer. So it's a web design skill, right? So if you are saying that I want to edit my website, so for that, if you want 100% control of your website, आपके पास HTML skill होनी चाहिए, CSS की skill होनी चाहिए, JavaScript का skill होना चाहिए. अगर आप उसके images को control करना चाहते हैं तो graphic design का skill होना चाहिए. Graphic design means static images. Graphic design, when I'm saying graphic design skill, I mean to say that static images. Images, जो JPG, PNG, that is your graphic, that is the part of graphic design, right? When you are saying that कि मेरी वेबसाइट में जो फंक्शनैलिटी है वो सही से काम नहीं कर रही है,
मेरा फॉर्म सही से काम नहीं कर रहा, लोग लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू लॉग इन, ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा है, या फंक्शनलिटी, इफ यू वांट टू प्रोवाइड एनी कैलकुलेटर, इफ यू वांट टू एनी काइंड ऑफ फंक्शनलिटी इशू है, फॉर दैट यू रिक्वायर्ड अ वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इन वन ऑफ द वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर गोइंग टू क्रिएट द वेबसाइट. सो मोस्ट पॉपुलर, द मोस्ट बेसिक वन, HTML5 भी अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. HTML5, HTML5 is the most advanced version of the HTML5. उसमें भी आप मोटा मोटा पूरा वेब प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. But for the advanced, you required a PHP, Java, .NET, Python, Ruby on Rail. So these are the different web programming language depending on किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट बनी हुई है. So आज के डेट में rather than doing that entire coding, we use CMS. अब ये पूरी वेब प्रोग्रामिंग सीखने के बजाय, इस पूरे वेब प्रोग्रामिंग को सीखने के बजाय, इसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे हम लोग CMS यूज करते हैं. CMS, दैट इज कंटेंट मैनेजमेंट. So, content management system. Okay, as a website owner, what you are more interested in, managing your content or managing the back end of the website? As a website owner, if you have a website, you are more bothered about that, what is the look and feel, how to add the web post, how to add the product, how to add the content on your website. You want to change the font size, color, or font style, or you are more bothered about the look and feel and front end of your website, or you are more bothered about कि back end में कौन सी programming language में काम हुआ है. What is more important to you as a website, as a layman? Right now you are not a programmer. As a layman, as a business owner, as a website, what is more important to you? Yes, you Ketan is very right. So he's saying content. So as a website owner, we are more interested in managing our content, कि हम उसमें प्रोडक्ट अपलोड कर पाएं, वीडियो अपलोड कर पाएं, इमेज गैलरी बना पाएं, या फिर वीडियो गैलरी बना पाएं, FAQ सेक्शन को अपने तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएं, ब्लॉगिंग को मैनेज कर पाएं, शॉपिंग, अगर हमारे ई-कॉमर्स की वेबसाइट है तो शॉपिंग कार्ट को मैनेज कर पाएं. सो कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का स्टाइल, हेडर, फुटर, साइड बार, इन चीजों में वी आर मोर इंटरेस्टेड, right? Rather than Manisha is also saying content. Very nice, thank you so much, Manisha. So here we are more interested in content. So keeping that thing in mind, क्योंकि majority of the population की requirement क्या है, they have something, some idea, they have something, some knowledge, some experience, something to offer. वो internet पे अपने knowledge को share करना चाहते हैं, but technically they are challenged. Technically they are not a programmer, not a developer, not a graphic designer, not a technically they are not that well versed कि पूरी की पूरी वेबसाइट को वो मैनेज कर पाए. Because technically if you want to be a complete web सारे वेब स्किल को चाहिए, तो आपको HTML भी चाहिए होगा, CSS भी चाहिए होगा, JS भी चाहिए होगा, ग्राफिक डिजाइनिंग भी चाहिए होगा, वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी चाहिए होगा. So on an alternative of that is the content management system. इनका एक ऑल्टरनेटिव है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. So content management system, as this session, this entire 20-hour training is focused towards marketing, digital marketing. It's not the web development classes, it's not the web designing classes, it's not the HTML classes, right? So it's the web, मतलब प्रोडक्ट आपके पास है, उसकी मार्केटिंग करनी है, because we have to market that product on the digital medium, and the core of the digital medium is website. राइट, डजेंट मैटर आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है. आप कैलेंडर सेल करना चाहते हो, उसके लिए वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं, लाइक आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, आप स्कूल्स के लिए वेबसाइट्स बनाते हैं, कॉलेजेस के लिए वेबसाइट बनाते हैं, गवर्नमेंट को वेबसाइट्स चाहिए, आप RO की सर्विस दे रहे हैं, उसके लिए वेबसाइट चाहिए, आप इमेजेस दे रहे हैं, उसके लिए वेबसाइट चाहिए, आप न्यूट्रिशन का सर्विस दे रहे हैं, उसके लिए वेबसाइट चाहिए, आप टूर एंड ट्रैवल की सर्विसेज दे रहे हैं, उसके लिए वेबसाइट चाहिए, कंप्यूटर, स्टेबल, रियल एस्टेट, you name it, you required a website, right? So web designing is the separate, that is, you can say that in digital marketing, the process of product creation is creating a website. जब वेबसाइट बन जाती है तब हम मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं. इनफैक्ट इवन अब चूंकि हम वेबसाइट का ऑल्टरनेटिव है कि बहुत सारे लोगों को वेबसाइट बनाना नहीं आता है,
So all these platform like Facebook is giving you the option to create a small version of your website as a Facebook page. YouTube is giving you an option कि ठीक है आपको वेबसाइट नहीं आता, आप वीडियो के थ्रू अपने नॉलेज को शेयर करो. यू लिंक्डइन इज गिविंग यू एन ऑप्शन कि आप अपनी कंपनी के लिए कंपनी पेज बना लो. वर्डप्रेस इज गिविंग यू एन ऑप्शन कि आप फ्री वेबसाइट बना लो जिसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली आपको वेल वर्स्ड होने की जरूरत नहीं है. So keeping that factor in mind, so many companies come up with the CMS, content management system, where they will give you the control to manage your front end of the content. बैकएंड सीएसएस क्या होगा, जेएस क्या होगा और एचटीएमएल क्या होंगे, वो सारा का सारा ये सीएमएस मैनेज कर लेगा. एक सॉफ्टवेयर आप केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करो, विक्स में जा करके हेडर, फुटर, साइड बार, मेन्यू, आप एक केवल फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ डेटा डालो और वो सॉफ्टवेयर आपके लिए जेएस, सीएसएस, एचटीएमएल, पीएचपी के प्रोग्रामिंग कर देगा. So that kind of technology is called there. That kind, there are so many there are so many such platforms are there, so popular, so good platforms are there, but we are going to focus on WordPress. हम जो फोकस करने वाले हैं वो वर्डप्रेस पे करने वाले. वर्डप्रेस में अदरवाइज वर्डप्रेस के जैसे ही आपके पास और भी वेबसाइट्स हैं. आप जूमला में भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं. दैट इज ऑल्सो CMS. मेजेंटो, आप अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो मेजेंटो में बना सकते हैं, जूमला में बना सकते हैं. देर आर सो मेनी CMS. PHP लैंग्वेज के, ये सारे PHP लैंग्वेज के CMS है. उस तरह डॉटनेट के अपने CMS आते हैं, पाइथन के अपने CMS आते हैं, जावास्क्रिप्ट के अपने CMS आते हैं. सो हर टेक्नोलॉजी के अपने CMS आते हैं. So PHP is one of the very popular open source language. So PHP WordPress is one of the oldest CMS. सबसे पहले आने वाले में से CMS में है. So they provide lot of flexibility, lot of features. और कभी भी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा वेबसाइट किसी टेक्नोलॉजी में बनी हुई है तो वो वर्डप्रेस में बनी हुई है. More than 35% of the world website is created in WordPress. So that's why we are going to focus on WordPress. But again, I'm repeating कि website develop कराना हमारे सेशन का मोटिव नहीं है. हमारी मार्केटिंग तब स्टार्ट होती है जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है. और डिजिटल मार्केटिंग के केस में प्रोडक्ट रेडी होने का मतलब है कि आपकी वेबसाइट रेडी है. सो आप एज अ डिजिटल मार्केटर कहीं काम करोगे तो वेबसाइट मैनेज करने का बंदा कोई और होता है. आप मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनपुट्स देते हो. आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने जा रहे हो तो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनपुट्स होते हैं वो आप अपने डेवलपमेंट टीम को, डिजाइनिंग टीम को, कंटेंट राइटिंग की टीम को, वीडियो एडिटिंग की टीम को, ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम को आप अपने मार्केटिंग का इनपुट दे सकते हैं. राइट लेकिन अल्टीमेटली आपका जो काम है, वेबसाइट बन गई तब उसमें कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना एंगेजमेंट हो रहा है, कितने कन्वर्जन्स हो रहे हैं, कितने रिटर्न यूजर्स हैं, ये सारा दैट इज योर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स. आपका सक्सेस इस बात पे डिपेंड करता है कि जो वेबसाइट बन गई है, जो फेसबुक पेज बन गया है, जो यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं, उसमें कितना व्यूज है, उसमें कितने लाइक्स हैं, उसमें कितना एंगेजमेंट है, उसमें कितने कन्वर्जन है, उसमें कितने कमेंट्स हैं, वहां से कितना धंधा आपने जनरेट किया. तो यू कैन से दैट कि इंटायर डिजिटल मार्केटिंग हैज द 3 स्टेप. फर्स्ट इज क्रिएटिंग योर डिजिटल प्रेजेंस, क्रिएशन. तो वेबसाइट क्रिएशन, फेसबुक पेज क्रिएशन, यूट्यूब वीडियोस क्रिएशन, ब्लॉग क्रिएशन, mail creation. So creation is the first process and then the distribution. Marketing is distribution. Now distribute it. आपने वेबसाइट बनाया, आप उसको मेल के थ्रू प्रमोट करो, आप उसको सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करो, आप उसको वीडियोस के थ्रू प्रमोट करो, आप उसको व्हाट्सएप के थ्रू प्रमोट करो, एसएमएस के थ्रू प्रमोट करो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हर प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करो. सो सेकंड स्टेज इज प्रमोशन एंड थर्ड स्टेज इज इंगेजमेंट. जब आप प्रमोट करोगे तो इंगेजमेंट होगी, लोग ट्रैफिक आएगा, इंगेजमेंट होगा. थर्ड स्टेप इज इंगेजमेंट, हाउ पीपल आर एंगेजिंग. एंड फोर्थ स्टेज इज जब इंगेजमेंट होगा तो यूजर्स जो है आपसे प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, दैट इज कन्वर्जन. और जब प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, आपके प्रोडक्ट से हैप्पी होंगे, सैड होंगे, दैट इज देन लॉयलिटी एंड ब्रांडिंग एंड लॉयलिटी. और इन सब के साथ आपको एनालिटिक्स भी रखना है. एनालिटिक्स का मतलब कि जो कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हो वो एक्टिविटीज आप मेजर कर पा रहे हो. सो दैट इज द पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. आवर फोकस इज दैट. सो हियर आपका, जैसे मैंने बताया कि सर्वर एडमिन का भी नॉलेज होना चाहिए अगर आप पूरी वेबसाइट को मैनेज करना चाहते हो. वेब कॉपी राइटिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, वीडियो का भी नॉलेज होना चाहिए, ग्राफिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए. अगर ऑडियो कंटेंट डाल रहे हैं तो ऑडियो का भी नॉलेज होना चाहिए.
So these skills are required to have to manage your website. I think is this got your idea? Right. So here we are. It's very, very nice questions you have asked, because when that this is the reason web development company are flourishing that way, because they have the team. उनके पास अपनी टीम होती है, उनके पास एक ग्राफिक डिजाइनर की टीम अलग है, वेब कंटेंट राइटिंग की टीम अलग है, प्रोडक्ट अपलोड करने की टीम अलग है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने वालों की टीम अलग है, एसईओ करने की टीम अलग है, फेसबुक प्रमोशंस की टीम अलग है, गूगल पे एड्स चलाने वालों की टीम अलग है. सो दे हैव द डिफरेंट लाइक उनके पास जो है वो अलग अलग टीम है. आप जब किसी कंपनी के पास जाते हो तो नाउ यू आर सेइंग कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है. सो वेबसाइट आपके लिए वो एक वेबसाइट है, लेकिन उस कंपनी के लिए उसके डिजाइनर अलग हैं, डेवलपर अलग हैं, सर्वर एडमिन के बंदे अलग हैं. उनके लिए वो सारे अलग, जो एक टीम के तौर पे सब अपना अपना काम करेंगे, फाइनली आपको एक वेबसाइट मिलेगी. Right. So here we are not going into that technicalities. We want to manage, we want to be an one man army. So one man army बनने के लिए आपको कोई ना कोई CMS use करना होगा. So here we are going to use WordPress. So far so good. अभी तक की चीजें समझ में आ गई? Is there anyone who is not able to understand it? Everything is clear. Nice, nice, nice. Thank you. So here we are starting as you know that कि जैसे जैसे आप grow होगे, then you can have a team. Right now let's focus on managing your everything yourself. So who want to create website? Who is ready to create website right now? Ketan is ready to create a website right now. Okay, that's fantastic. Amrit is also ready to create a website. Amrit, can you is it okay, can you share your screen? So Ketan has the chance. Yesterday I want to do a little bit of experiment with Amrit, and then we will come back to the Ketan as well. So yeah, Amrit, are you okay to share your screen? Okay, Amrit is taking classes from mobile. So one more thing here, I'm whatever I'm talking, that corresponding mobile app is available. तो जब हम वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं तो वर्डप्रेस का मोबाइल ऐप है, पूरी की पूरी वेबसाइट आप मोबाइल वर्डप्रेस पे मैनेज कर सकते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द असाइनमेंट कि आप जा करके वर्डप्रेस का मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लें. सो दिस इज योर असाइनमेंट कि इंस्टॉल वर्डप्रेस मोबाइल ऐप. कल हम लोगों ने बात करी थी किसकी? कल हम लोगों ने बात करी थी गूगल माई बिजनेस की. तो गूगल माई बिजनेस का भी मोबाइल ऐप है. इंस्टॉल गूगल माई बिजनेस मोबाइल ऐप. इंस्टॉल, स्पेलिंग आप देख लेना. इंस्टॉल गूगल बिजनेस मोबाइल ऐप. सो वट एवर यू हैव दैट यू कैन मैनेज थ्रू योर मोबाइल एज वेल. तो जो आपने गूगल माई बिजनेस बनाया है उसको भी आप मोबाइल से मैनेज कर सकते हैं. उसके रेटिंग, रिव्यूज, उसके रिप्लाई, उसमें फोटो अपलोड करना, उसके पोस्ट क्रिएट करना, उसके एड्रेस को चेंज करना, वो सारा काम आप मोबाइल ऐप से मैनेज कर सकते हैं. इन द सेम वे वर्डप्रेस के केस में भी आप सारा कुछ मोबाइल ऐप से मैनेज कर सकते हैं. बट हियर फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग, so I'm going to Ketan is going to share his screen, and I'm going to guide how he can create a website. Once he will create a website, I will take the screen back and I will explain everything. All right. So Ketan, are you ready to share your screen? Should I make you host?
Oh my God, is my voice was not audible? I'm so sorry. I was on mute. I don't know since when I was on mute. So कहाँ तक मेरी आवाज आ गई थी? मैम बस लास्ट 1 मिनट या 30 सेकंड, ज्यादा नहीं। Okay, तब तक okay, सुनाई दे रही थी सबको। okay, fine, fine, fine. Thank you, thank you. So now we are going to start creating a website. एक WordPress में free website बनाएंगे अभी हम लोग, and then we will do rest of the promotion on that website. So we have a dedicated training on how to manage the entire website from scratch to finish, including the HTML, CSS, JavaScript, WordPress, and all that part. So we are not going into that detail. So here I'm giving you an opportunity to experiment with your website without coding. विदाउट कोडिंग जितनी भी चीजें कर सकते हैं उसका नॉलेज मैं अभी दूंगी। जहां पे भी कोडिंग की रिक्वायरमेंट होगी उस पार्ट को अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, राइट? So here you can just go to the Google and open WordPress. So WordPress is one of the PHP CMS. So we are मेरी going to स्क्रीन create our दिख रही है free. सबको? Sorry. इज एवरीवन एबल टू सी माय स्क्रीन? Yes, I hope so. I'm able to see. So let's ओके। let me confirm from others. So all of you are able to see the screen. Say yes if we are ready to start the WordPress. व्हाट डू आई टाइप? Yes, you have to type WordPress. Yes, Amrit is saying yes. Manisha is saying yes. Nice. Aditi is also saying yes. Wonderful, wonderful. Thank you, thank you. So here we are starting with the WordPress. You have to go to the Google and type WordPress and then click enter, right? And open WordPress. Either you can, this is the Google Ads. As I said, AD means WordPress advertisement. Just scroll a little bit, scroll down a little bit. एंड दिस इज वर्डप्रेस ऑर्गेनिक रिजल्ट। यहाँ पे वर्डप्रेस की एड भी चल रही है और वर्डप्रेस की एक नहीं, वर्डप्रेस की दो एड भी चल रही है और वर्डप्रेस का की ऑर्गेनिक एसईओ वाले रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो यू कैन क्लिक ऑन एनी वन, या तो वर्डप्रेस के एसईओ वाले रिजल्ट पे क्लिक कर सकते हैं या एड पे क्लिक कर सकते हैं। इन जनरल हियर वन मोर थिंग यू कैन कीप इन माइंड कि जब भी आप एड पे क्लिक करोगे, जब भी एड पे क्लिक करो, बिकॉज एड हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज एनीथिंग एनी टाइम। जब आप एड चला रहे हो तो उस एड का लैंडिंग पेज क्या होगा और जब चाहो आप चेंज कर सकते हो, राइट? तो एड पे क्लिक करने पे जिस पेज पे लैंड करोगे, मेजोरिटी ऑफ द टाइम दैट पेज इज फोकस्ड टुवर्ड्स डूइंग द पेमेंट। वो जो एड चला रहे हैं, फॉर एवरी सिंगल क्लिक दे आर पेइंग। सो इन जनरल वो ऐसा लैंडिंग पेज बनाते हैं जिसमें कि वो आपको गाइड कर सके पेमेंट के टुवर्ड्स, राइट? एसईओ के केस में एक बार जो पेज लैंड कर रही है, एसईओ के केस में गूगल इज डिसाइडिंग कि कौन सा पेज डिजर्विंग पेज है, किस पेज को टॉप में आना है। सो हेयर इन केस ऑफ एसईओ रिजल्ट, ये जो एड के नीचे जो wordpress.com है, क्रिएट अ फ्री वर्डप्रेस, ये जो रिजल्ट्स है वो फ्रिक्वेंटली वर्डप्रेस चेंज नहीं कर सकता है, उसको चेंज होने में टाइम लगता है। So if you want to see that what is the free options, तो majority of the time we go for the SEO result. गूगल एड्स के केस में वो अपना टाइटल कभी भी चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कभी भी चेंज कर सकते हैं, लैंडिंग पेज में टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। तो पेड एड के केस में इन जनरल जिस पेज पे आप लैंड करोगे वो डिफरेंट हो सकता है, और यहाँ ऑर्गेनिक के एसईओ वाले केस में लैंड करोगे तो वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। इट मे बी डिफरेंट, बट दोनों का ऑब्जेक्टिव विल बी, they will ask you to create a WordPress website. They will guide you to create a WordPress website. फ्री वाले में वो हो सकता है सीधे फ्री अकाउंट से बनाना शुरू कर दें, बट पेड गूगल एड वाले पे क्लिक करोगे तो दे विल मेजॉरिटी देयर फोकस इज कि आप वर्डप्रेस का कोई प्लान बाय कर लो। सो वो फ्री ऑप्शन थोड़ा सा ज्यादा मतलब बहुत प्रोमिनेंट नहीं दिखेगा। So this is the difference, this is the thing you will notice in anywhere, like whether you are opening like make my trip website or whether you are opening any website, अगर दो ad भी चल रही है, ऑर्गेनिक रिजल्ट भी है, तो ad का फोकस है कि अभी करंट ऑफर क्या है, अभी करेंटली बेस्ट ऑफर्स क्या है, या बेस्ट पेमेंट मॉडल्स क्या है, या बेस्ट डिस्काउंट्स क्या है, या बेस्ट कन्वर्जन के लिए वो क्या कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक वाले रिजल्ट में, दैट इज फ्री एसईओ वाले रिजल्ट में, जो पुराना चला आ रहा है होम पेज, जनरली वही पेज अपीयर होता है।
right? So you can click on any one. Let's click on create your website or blog. Yes. सो अगर आप दोनों पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है इंटरफेस आप लोगों का अलग अलग हो. कोई अगर ऑर्गेनिक पे क्लिक करेगा तो फर्स्ट इंटरफेस डिफरेंट हो सकता है, और पेड ऐड पे क्लिक करेंगे तो इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है. इट्स ओके, इसमें कोई यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट. आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि बोथ आर मेकिंग यू गाइडिंग यू टू क्रिएट योर फर्स्ट वेबसाइट. So here, create a website in a minutes. WordPress.com gives you everything you need to start your website today. Means जो अभी हम लोगों ने एक वेबसाइट से रिलेटेड इतनी सारी चीजें बात करी, एक डोमेन चाहिए, होस्टिंग चाहिए, वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग चाहिए, CSS चाहिए, जावास्क्रिप्ट चाहिए, HTML चाहिए, PHP चाहिए, इतनी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट को वो छोड़ के बोल रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल कंटेंट डालो, हम आपकी वेबसाइट बना देंगे. राइट. सो आपको होस्टिंग भी फ्री में मिल रही है, डोमेन भी फ्री में मिल रहा है, वर्ल्ड क्लास सपोर्ट भी फ्री में मिल रहा है, सो मेनी थिंग्स आपको यू आर वर्डप्रेस इज गिविंग यू अ कंप्लीट पैकेज. राइट. सो लेट्स क्लिक ऑन स्टार्ट योर वेबसाइट. So here now the first thing, if you are getting started with the digital marketing, one thing you have to always keep in mind कि every day 100 200 500 अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं. इफ यू आर वेरी एग्रेसिवली वर्किंग ऑन द डिजिटल मार्केटिंग, हर वेबसाइट पे जाके सबसे पहला काम जो करना है वो अकाउंट बनाना है. तो मार्केटिंग इज अबाउट रीचिंग आउट टू द पीपल. सो रीचिंग, आप डिजिटल मीडियम पे रीच आउट कैसे करेंगे? दूसरी वेबसाइट्स के थ्रू रीच आउट करेंगे. तो जितनी ज्यादा वेबसाइट पे रीच आउट करेंगे, जितनी ज्यादा वेबसाइट्स पे आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज वेबसाइट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उतने ज्यादा अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे. So you must have a separate Excel sheet to manage your user ID, password, email ID for every website. अभी हम लोग वर्डप्रेस पे अकाउंट बना रहे हैं. कल हम लोगों ने गूगल माई बिजनेस पे अकाउंट बनाया था. अभी फेसबुक पे अकाउंट बनाना होगा, लिंक्डइन, रेडिट, स्टम्बल अपॉन, जो भी वेबसाइट्स उठा ले. आई विल गिव यू अ प्लेस वेयर यू कैन फाइंड मोर देन 300 सोशल मीडिया वेबसाइट और 500 सोशल मीडिया वेबसाइट. आई विल आस्क यू टू गो एंड क्रिएट योर प्रोफाइल ऑन दोज 500 सोशल मीडिया वेबसाइट्स. राइट. तो 500 प्लेसेस पे आपको अपने अकाउंट बनाने होंगे, और हर अकाउंट में ईमेल आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड. तो अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस आपको हो जाएगी. दूसरी बात कि हर वेबसाइट का यूजर आईडी, पासवर्ड आपके पास एक मतलब रेडी, आपके एक गूगल शीट में या कहीं पे बिल्कुल रेडी होना चाहिए, ताकि आप या आपका कोई एम्प्लॉय फ्यूचर में उस वेबसाइट, उस प्रेजेंस पे काम करना चाहे, उसको इम्प्रूव करना चाहे, वहां ऐड चलाना चाहे, वहां से लीड जनरेट करना चाहे, तो उसके पास उस पे लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी, पासवर्ड रेडी हो. राइट. सो यू मस्ट हैव यू दिस, मेक इट अ प्रैक्टिस की यूजर आईडी, पासवर्ड को कैसे मैनेज करते हैं. मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एम्प्लॉय छोड़ के गया तो साथ में गूगल एड्स का यूजर आईडी, पासवर्ड भी नहीं पता है, एनालिटिक्स का यूजर आईडी, पासवर्ड भी लेके चला गया, तो वर्डप्रेस का यूजर आईडी, पासवर्ड भी लेके पता नहीं है कहाँ है. सो एज अ वेबसाइट ओनर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके जितने डिजिटल प्रेजेंस हैं, हर डिजिटल प्रेजेंस का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए. हर डिजिटल प्रेजेंस का यूजर आईडी, पासवर्ड का लॉगिन आपके पास होना ही चाहिए. राइट. सो लाइक फॉर एग्जांपल, ओला, ओयो रूम्स क्या करते हैं, होटल्स को लेते हैं अपने कैप पर और उनकी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग कर देते हैं, और गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग करके यूजर आईडी, पासवर्ड होटल ओनर्स को शेयर नहीं करते. और जब होटल ओनर्स उस पे काम करना चाहते हैं, देन दे हैव टू रश टू दी ओयो रूम्स कि आप मुझे इसका एक्सेस दे दो, एक्सेस दे दो, एक्सेस दे दो. सो सी, दिस इज योर डिजिटल प्रेजेंस. तो उस डिजिटल प्रेजेंस को मैनेज करने का, उसको कंट्रोल करने का, उसको, उस पे क्या कंटेंट जाएगा, उसमें कौन सी इमेजेस जाएगी, ये सारा कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए. दैट इज योर प्रॉपर्टी. तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके हाथ में होनी चाहिए. सो हियर सो we are creating our WordPress account. तो WordPress account बनाने के लिए आपको यूजर आईडी, ईमेल आईडी चाहिए, यूजर आईडी चाहिए, पासवर्ड चाहिए. ये यूजर आईडी, ईमेल आईडी, पासवर्ड आप सेव करके रख लेंगे, बिकॉज दिस इज द सेम यूजर आईडी, पासवर्ड यू हैव टू लॉग इन एवरी टाइम टू डू एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन योर वेबसाइट. वर्डप्रेस की वेबसाइट में कोई भी चेंज करना होगा तो इसी यूजर आईडी, इसी पासवर्ड से लॉगिन करके आप चेंज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे. अगर आपने यूजर आईडी, पासवर्ड मिस कर दिया है
तो ये ईमेल आईडी याद रखना होगा ताकि आप इस ईमेल आईडी पे आप पासवर्ड को रिट्रीव कर पाए. So hope I'm clear about the importance of the managing the user ID and password. And then you can click on create your account. Click on create your account. So this name already exists. You have to do the brainstorming to provide a unique username. जैसे Gmail पे account बनाते हैं तो account आपका already exist कर रहा होता है तो आप नहीं बना पाते. So in the same way अगर वो email ID वो username आपको नहीं मिल रहा है तो आपको username change करना होगा. Now, fantastic. Congrats. You have created your first account on the WordPress. Now we are going to decide our domain name. So if you remember yesterday हम लोगों ने देखा था कि वेबसाइट बनाने के लिए आपको डोमेन नेम की जरूरत होती है एंड डोमेन नेम इज अ पेड थिंग. तो डोमेन के लिए आपको रेंटल पे करना होता है 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर 10 ईयर्स के लिए पेमेंट करनी पड़ती है. बट इन दिस केस हियर वर्डप्रेस इज गिविंग यू बोथ द ऑप्शन कि आप या तो musafirvox.in बाय कर लो या 1050 रुपीज पर ईयर आपको रिन्यूअल चार्जेस लगेंगे. musafirvox.co.in इज ऑल्सो अवेलेबल 1050 रुपीज पर ईयर लगेंगे. तो आपको .in .co.in .net .com ये सारे .org आपके आप अगर बाय करने के लिए रेडी हो तो बाय कर सकते हैं. बट एक ऑप्शन फ्री में भी है. कैन यू सी द फर्स्ट ऑप्शन? स्क्रॉल डाउन. इस केस में musafirvox.wordpress.com. तो ये जो फ्री वाला ऑप्शन होगा उसमें हमेशा wordpress.com लगा रहेगा. अगर आप फ्री वाले ऑप्शन पे जाते हैं, ये भी फ्री है? नहीं, ये नहीं, फ्री बाकी सारे पेड है. फ्री, इनके फ्री होने का मतलब है कि 1 ईयर फ्री होगा या अगले बार रिन्यू करना होगा, लेकिन आपसे पेमेंट इंफॉर्मेशन अभी लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे. है. आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन अभी देनी पड़ेगी तभी वो फर्स्ट ईयर के लिए फ्री हो सकता है, नेक्स्ट ईयर के लिए इतना रिन्यूअल हो सकता है, या फर्स्ट मंथ फ्री होगा, नेक्स्ट मंथ के लिए रिन्यूअल चार्जेस होंगे. So rest everyone is paid, but musafirvox.wordpress.com this one is free. मैम एक डाउट है. फर्ज करिए कि हमने ये डोमेन नेम सिलेक्ट किया और उसके बाद फिर आगे जैसे बिजनेस बढ़ा तो हमें उसको चेंज करना है musafirvox.com पे, एक्सेप्ट एक्सटेंशन नाम वही रहने वाला है. क्या वो सहूलियत होगी हमें? See, on virtual world, in the cyberspace, on the internet, your identity is your URL. आपका जो एड्रेस है वो URL है. तो musafirvox.wordpress.com एक अलग एड्रेस है और musafirvox.com अलग एड्रेस है, musafirvox.in अलग एड्रेस है, .org अलग एड्रेस है. तो आपके URL में अगर जरा सा भी चेंज हो रहा है तो वो एड्रेस चेंज हो गया. राइट. सो जैसे ही आपने musafirvox.com भले ही पूरा का पूरा कंटेंट उठा के वहां पे डाल दिया, लेकिन उसकी जो रिकॉग्निशन है इट इज द सेम लाइक कि आप अपने कोई दुकान खोली और पहले आपने उस दुकान का नाम रखा था भावना ट्रेनिंग कंपनी और अब उसका नाम चेंज करके रख दिया पंकज ट्रेनिंग कंपनी. तो नाउ जो आपके पुराने कस्टमर हैं उनको नहीं पता है कि ये भावना ट्रेनिंग कंपनी और पंकज ट्रेनिंग कंपनी सेम ही है, पहले से नया हो गया. मींस यूआरएल इज योर आइडेंटिटी. तो यूआरएल जनरली हम लोग ये दिस इज वन ऑफ द एडवाइस कि डिजिटल मीडियम में आप अपने यूआरएल को सोच समझ के क्रिएट करें और जो क्रिएट करें जब तक कि बहुत अर्जेंट बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो उसको चेंज ना करें. अगर चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है तो यस देयर इज अ प्रॉपर वे टू डू दैट. सो यू फॉलो दैट प्रोसेस टू चेंज द नेम. उस केस में क्या होता है कि जितने पुराने यूआरएल हैं वो आपको रिडायरेक्शन सेटअप करके नए वाले यूआरएल पे हम लोग रिडायरेक्ट करा देते हैं. तो जितने लोग पुराने वाले यूआरएल पे जाएंगे, यू मस्ट हैव सीन दैट कि कभी कभी आप खोलते हो एबीसी और वो हमेशा रिडायरेक्ट होके चला जाता है XYZ पे. राइट. सो इन दैट केस उनका पुराना यूआरएल जो था वो एबीसी था और नया उन्होंने डोमेन क्या ले लिया XYZ. तो अब उसको अब एक एक करके तो सबको जाके नहीं बताएंगे. बहुत सारे लोगों ने एबीसी को बुकमार्क करके रख लिया होगा, फेसबुक में शेयर हुआ होगा, मेल पे शेयर हुआ होगा, व्हाट्सएप पे शेयर हुआ होगा, या लोग किसी भी तरीके से पुराना यूआरएल भी मार्केट में चल रहा है. तो आपने नया चेंज कर दिया, आप एक एक को नोटिफाई नहीं कर सकते. सो इन दैट केस हम क्या करते हैं, डोमेन लेवल रिडायरेक्शन लगा देते हैं. So that is a particular steps you have to follow if you are changing the URL.
इफ यू आर चेंजिंग द डोमेन नेम, आप .com कर रहे हैं, डैश लगा रहे हैं, एस लगा रहे हैं, एस हटा रहे हैं, कॉमा लगा रहे हैं, फुल स्टॉप लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यूआरएल चेंज हो गया। चेंज होने का मतलब है गूगल, फेसबुक, सारा बॉट जो है उसको एक नया एड्रेस के तौर पे ट्रीट करेगा। Okay. जब तक कि आप उसको कहीं से रिडायरेक्शन सेटअप, या तो परमानेंट रिडायरेक्शन या टेम्पररी रिडायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड 301, 302, थोड़ा सा मतलब अगर ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो लोग करते हैं। दैट इज यूआरएल रीराइटिंग इज वन ऑफ द टास्क इन एसईओ टू मेक द यूआरएल यूजर फ्रेंडली। जनरली पुराने टाइम में क्या होता है, डॉट php डॉट क्वेश्चन मार्क आई पेज आईडी इज इक्वल टू 1 2 3 4, इस तरह के यूआरएल बनते थे। तो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से अब जितने पुराने यूआरएल थे, बहुत सारी कंपनी जैसे naukri.com जैसी कंपनी है, उन्हें लाखों लाख यूआरएल को रीनेम कर दिया, मेक देम मोर एसईओ फ्रेंडली। तो उस केस में क्या हुआ कि हर एक का करस्पॉन्डिंग फिर उन्होंने रिडायरेक्शन सेटअप किया। URL 1 goes to, whenever someone will try to open URL 1, they will get redirected to the URL 2 till the time your URL new URL get the recognition कि okay ये पुराना ही नाम rename हुआ है। So yes, you can do it very much, but there is a proper step to do that, right? Sorry, come again. So yes, you can change the domain name. अभी आपका wordpress.com है, जब चाहे आप musafirwalks.com भी ले सकते हैं, and उसमें आप domain level redirection लगा करके there is a proper step you have to follow to change the domain name. Okay. So then you will get the benefit of whatever work you have done in the old URL. Okay. अगर आपको बेनिफिट नहीं लेना है, देन दैट इज अ न्यू बिजनेस, न्यू वेबसाइट, नया स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो फिर आपकी पूरी जो पुराना आपने मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन किया उसका कोई एडवांटेज आपको नए वाले पे नहीं मिलेगा। अगर आप उसको रिडायरेक्शन सेटअप कर देते हैं तो जितनी मार्केटिंग आपने एफर्ट इस पे की है उसका सारा एडवांटेज आपको नए वाले पे भी मिल जाएगा, राइट? Yes. So all these are the paid one. So right now we are not interested in paid one. Just do a scroll up and there is a small start with free website. Choose a plan or start with a free website. Pick a plan that writes for you. Under that there is an option. Choose a plan. उसके ऊपर Start. मेरे मेन्यू सिलेक्शन आ गया, एक मिनट। हाँ, ओके, स्टार्ट विद द फ्री वेबसाइट। Yes. So here we have ignored, if you are ready to start with, you can just buy your domain and hosting from the WordPress itself. Either you can buy domain hosting from GoDaddy, BigRock, HostGator, इतने सारे डोमेन रजिस्ट्रांट हैं, कहीं से भी आप डोमेन और होस्टिंग बाय कर सकते हैं। डोमेन कहीं और से, होस्टिंग कहीं और से भी बाय कर सकते हैं। डोमेन होस्टिंग एक ही जगह से भी बाय कर सकते हैं। डोमेन होस्टिंग वर्डप्रेस से भी बाय कर सकते हैं। So right now WordPress is giving you free subdomain, that is called subdomain. आपकी वेबसाइट क्या बन गई? musafirwalks.wordpress.com, musafirwalks.wordpress.com. So यहाँ पे मुसाफिर वॉक्स क्या हो गया? सब डोमेन हो गया। wordpress.com क्या हो गया? मेन डोमेन हो गया। So musafirwalks.wordpress.com is your website which will you share with the public. So just remove that part. musafirwalks.wordpress.com के पहले जितना भी पार्ट है आप उसको डिलीट कर दो, and you can see the structure of your website ready. ये यहाँ पे ना? हाँ, including slash. Yes. So enter. So this is the website, this is the domain name, this is the URL which you are going to share with your friend and family in the public domain. So जिनको भी बताना है कि मैंने नई वेबसाइट बनाई है, उनके साथ आप क्या शेयर करेंगे? musafirwalks.wordpress.com. Right, you are the admin of the website, you are the creator of the website. Now you want to change the website content. आपको header, footer, sidebar सारे change करने हैं, तो उसके लिए we will right now we will do the admin, we will enter into the admin section. So I will let you know how to enter into the admin section. Yeah, but it's not the new thing. So it might be internet. Could just be. Refresh it. Reload. So this is the domain name for the public which you are going to, this is your identity on the internet. One of the free identity we have created just now. Yesterday we have created Google My Business identity. Today we have created musafirwalks.wordpress.com.
सो हर जो एक फ्रंट एंड होता है जो ऑडियंस को दिखता है, जो पब्लिक को दिखता है, और एक बैक एंड होता है जहां पे आप चीजों को ऐड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट को देखने के लिए वी विल अभी हम लोग करेंगे इसको कैसे कर सकते हैं। नहीं हो रहा सो है। okay, no worries. Can you Wait, wait, share wait, the wait, 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 wait. Yeah. yes. So the structure of your website is ready. So here from here, I would like to take the control. If you can share the user ID and password with me, and you can change it later. Is that okay? Okay. So that I will little bit show you the structured way how to get started with it. Or can you just do it from your end? Yes, I have to create a, okay, let me see. Now, so far here, account creation is all fine with you guys. So I will take another WordPress website and I will show you how to do it. Right. Because I have already created, I don't know how many free WordPress websites. So I don't have any email ID spare to create a new one. So I will open any existing one and I will start from the scratch. So a website, yahan tak aane mein, do you feel, how many you feel that you can come till here? वर्डप्रेस पे यूजर आईडी पासवर्ड देके अकाउंट बनाना और फिर योर डोमेन नेम डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम तक खोलना में डू यू फील हाउ मेनी यू फील कॉन्फिडेंट दैट यू कैन डू टिल हियर? Ketan, here I'm taking the control of Sure. the screen and then I'm going to walk you through. So just share your percentage of understanding so far, how much percentage you have got that. So जिन लोगों को मेरे स्क्रीन दिख रहा है, is my screen is visible to all of you? Aditi, 90%, very nice. Manisha is saying yes, fantastic. So here I'm just giving you a glimpse कि एक आपने wordpress.com पे जाना है, doesn't matter, यहाँ पे कहीं पे भी आपको get started, start your website. अगर आपकी already website बनी हुई है तो login करेंगे, अगर नहीं बनी हुई है तो get started करेंगे. So get started करेंगे, then we'll ask you for कि आपको website बनानी है, वो free बनानी है या first you have to create an account. So let's suppose I'm creating an account. Account already मेरा बना हुआ है, so they will not allow me to create the account with the same Gmail ID. So even I'm trying to create, but they will not allow me, I know. So let's if you will try to create account, they will say that कि इस email IDs already बने हुए हैं. हालांकि one email ID से you can create multiple free website. एक आपने वर्डप्रेस का एक ही अकाउंट बनाया है, एक ही वर्डप्रेस के अकाउंट से मल्टीपल वेबसाइट्स बना सकते हैं. फॉर दैट यू हैव टू लॉग इन. सो राइट नाउ आई एम नॉट क्रिएटिंग द अकाउंट, आई एम लॉगिंग इन टू द एग्जिस्टिंग अकाउंट. So I'm trying to log in into the existing account. So I'm using this email address to log in and I'm not sure what is the password. Let me see if they may allow me to enter. So yes, so here now I'm logged in into my account and creating a new website. Domain already bana hua hai, even I'm creating a new website. So let me see what kind of website I have already created. Here you can go to the back to my website and you can see that 3 websites are already there. The successmentor.wordpress.com, bhavnabhardwaj.wordpress.com, bhavna p.wordpress.com. 3 account is already created. Right. So if you want to create a new website, अगर आपको नई वेबसाइट बनानी है, so here there is an option to create a new website. So here there is an option to create a new website. Can you see that? Digital Marketing C, WordPress.com. These are the already associated account with this Gmail ID. भावना भारद्वाज से ऑलरेडी ये एसोसिएटेड अकाउंट है. तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू शो यू फ्रॉम वन मोर टाइम हाउ यू कैन क्रिएट अ फ्री वेबसाइट. सो हियर आई एम एडिंग अ न्यू वेबसाइट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग अकाउंट. वर्डप्रेस पे अकाउंट बनाना आप लोग बहुत आसान है, कर लेंगे फॉर श्योर. अब वर्डप्रेस पे जो आपने एक फ्लो में पहला अकाउंट बनाया होगा तो एक वेबसाइट बनी, आप चाहें तो मल्टीपल वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस इज गिविंग यू 3 GB ऑफ स्पेस, 3 GB ऑफ फ्री स्पेस.
3 जीबी एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसके बाद वर्डप्रेस आपको नहीं देता है। तो दैट यू कैन कीप इन माइंड कि डजंट मैटर हाउ मेनी वेबसाइट यू कैन क्रिएट, बट वर्डप्रेस हैज गिवन यू ओनली एंड ओनली 3 जीबी ऑफ फ्री स्पेस. So I'm showing you how you can create a new website. So here you can create a new website, add new website. So here you can give the domain name. So let's suppose my website name is called Digital Seekers. So here, so you can digitalseekers.wordpress.com. This one is free. Rest everyone or rest all are paid. So for that I have to go for the plan कि पहला साल तो वो फ्री दे देंगे, उसके बाद रिन्यूअल होगा. So right now I am interested in free one. So I would suggest all of you फ्री वाले में जितना एक्सपेरिमेंट करने हैं, जितने एरर्स, जितने हिट एंड ट्रायल करने हैं, सारा एक्सपेरिमेंट करके आप थक जाओ, then you go and buy the domain name and import all the data from the free one and export it to the export from free website and import into the your own domain. So आपने जितनी मेहनत की है, जितना काम किया, वो कोई वेस्ट आपका नहीं जाएगा. पूरा का पूरा कंटेंट आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके अपने सेल्फ होस्टेड डोमेन में इंपोर्ट भी कर सकते हैं. So digital seeker spelling is correct, DIGITAL, because ये बहुत चेक करना बहुत जरूरी है. डोमेन नेम में कोई भी चेंजेस एक बार बनने के बाद नहीं होता है. अगर आप डोमेन बाय भी कर रहे हैं और गलती से कोई मिस स्पेलिंग कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको फिर नया डोमेन ही बाय करना पड़ता है. तो मेक श्योर कि दिस इज वेरी करेक्ट, DIGITAL seekers.wordpress.com. I want to continue with it. I click on continue. So here this is one thing. After once you have created the website, selected the subdomain name, now entire WordPress is theme based website. So next assignment I am giving you for the WordPress assignment. Assignment is first create WordPress को मैं शॉर्ट में WP हम लोग लिखते हैं, account, right? And then select सब डोमेन नेम. जनरली अगर हम लोग डोमेन बाय करेंगे तो वो मेन डोमेन हो जाएगा, लेकिन हम लोग बाय नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए सब डोमेन होगा. सब डोमेन. सो चूज योर सब डोमेन. और जो डोमेन ऑलरेडी किसी ने चूज कर लिया है, ले सपोज मुसाफिर वॉक्स केतन ने सेलेक्ट कर लिया है, तो मुसाफिर वॉक्स डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम मैं नहीं कर पाऊंगी बिकॉज केतन हैज ऑलरेडी सेलेक्टेड दैट, राइट? तो यू हैव टू सेलेक्ट अ यूनिक सब डोमेन. डोमेन भी बाय करते तो यूनिक ही आप बाय कर सकते हैं. So unique subdomain, and after that you have to do the email verification. Make sure to do the email verification. Ketan, you have to, whatever email ID you have given, उस email पे WordPress के पास से एक mail आई होगी. You have to verify that email ID. Then only your website will you will be able to publish your website. अगर आप ईमेल वेरिफिकेशन नहीं करोगे तो आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश नहीं कर पाओगे. सो मेक श्योर आप अकाउंट बनाने के बाद, सब डोमेन सेलेक्ट करने के बाद आप ईमेल वेरिफिकेशन फॉर श्योर कर लो. देन यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द थीम फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट. थीम इज, यू कैन से दैट आपको एक टेम्पलेट मिलता है. थीम यू कैन ऑल्सो टर्म्ड इट एज अ टेम्पलेट. हाँ, आई है वर्डप्रेस से ईमेल. हाँ, तो आप उसको वेरीफाई कर लेंगे. ओके. So theme is the backbone of the website, look and feel of the website, structure of the website, template of the website. तो WordPress website जो है वो theme based website होती है. In a very lay language you can say that कि आपको एक बनाई website मिल रही है और आप उसको अपने according आपको एक semi furnished और non furnished और केवल structure एक apartment मिला है, उस apartment का interior आपको करना है. This is similar to like that. जैसे आप किसी, let's suppose I have gone to ATS, तो ATS में सारे अपार्टमेंट एक जैसे हैं लेकिन सबका इंटीरियर डिफरेंट है, राइट? सो सबका 2 BHK सब एक जैसे हैं, 3 BHK सारे एक जैसे हैं, 5 BHK सारे एक जैसे हैं, लेकिन जब आप एंटर करते हो देन यू कैन फील दैट कि ये फ्लैट और वो फ्लैट दोनों डिफरेंट है. सो इन द सेम वे हो सकता है 100 वेबसाइट ओनर ये थीम यूज कर रहे हो, लेकिन जब आप वेबसाइट को देखेंगे तो आप पता आपको यू विल नॉट रियलाइज इट कि ये सेम ही थीम पे बना हुआ है, बिकॉज टेक्स्ट विल चेंज, इमेज विल चेंज, सब कुछ पूरा स्ट्रक्चर आप चेंज कर सकते हैं, right? So here we are going to focus on selecting a right theme. So here WordPress is giving you the option to select the theme and you can change the theme anytime. आप अपना थीम कभी भी चेंज कर सकते हैं. थीम के चेंज करने से कंटेंट चेंज नहीं होता है,
ले सपोज अभी मैंने यहाँ थीम से स्टार्ट किया और ये थीम में मैंने यहाँ पे टाइटल डाला और यहाँ टेक्स्ट डाला, ये कॉल टू एक्शन बटन डाले, अपने सर्विसेज की लिस्ट डाली, और उसके बाद 1 महीने बाद ये थीम चेंज करके मैंने ये थीम ले लिया। सो अब इस थीम में यही कंटेंट इस थीम में प्रेजेंट करना है आपको, लेकिन कंटेंट विल रिमेन इनसाइड योर वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल है वहां पे आपका पेजेस, पोस्ट, कैटेगरी, लिंक, हेडर, फुटर, मेन्यू, आपने जो कुछ भी बनाया है वो सब बना रहेगा। आप उसको रीऑर्गेनाइज करेंगे। यहाँ पे अगर 2 मेन्यू है, यहाँ पे एक ही मेन्यू है, तो आप 2 मेन्यू के कंटेंट को एक मेन्यू में प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे ये टेक्स्ट अपीयर हो रहा है, वही टेक्स्ट यहाँ पे इस तरीके से अपीयर हो सकता है। ये जो पेजेस हैं वो हो सकते हैं इस तरीके से अपीयर हो रहे हो। तो जो कंटेंट आपने एक बार बनाया वो कंटेंट रहता है जब तक कि आप डिलीट नहीं करते हो, लेकिन थीम चेंज करने से उसी कंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है, right? So you can change theme anytime. You can change your theme anytime. So here I want to pick a theme, something related to digital. I'm not sure. You can change your theme anytime. So anything related to digital is so let's suppose I'm taking this theme. This is a digital seeker. So I'm trying to create a community of the people who is interested in digital. So it's a kind of community websites. Let's suppose digital seeker is the community of the people who is interested in digital content. So I'm creating a community. So that way I have selected the theme. So you if you want to change right now, you can change it. Otherwise, we will change it later. So here I'm click on continue. सो नाउ दे आर गिविंग यू द ऑप्शन कि ये सारे फीचर्स आप अगर पे करोगे तो ये फीचर्स भी आपको मिलेंगे। ये सारे के सारे पेड फीचर है। कस्टम डोमेन मींस यहाँ पे digitalseekers.wordpress.com है। कस्टम डोमेन का मतलब हो गया digitalseekers.com। आप उसमें ऑनलाइन स्टोर इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसका एसईओ कर सकते हैं। उसमें प्लगइन इज जैसे एक स्ट्रक्चर हो गया आपका, आपका फ्लैट एक स्ट्रक्चर है। तो जब आपने फ्लैट लिया था वो अनफर्निश्ड फ्लैट था, लेकिन आपने उसमें एक थीम डाल दिया मीन्स आप उस फ्लैट का इंटीरियर आपने कर दिया। नाउ प्लगइन इज कि आपने प्लग एंड प्ले पूरा मॉड्यूलर किचन कहीं से खरीद के लाए और आपने मॉड्यूलर किचन डाल दिया। आपने एक वार्डरोब लेके बेडरूम का वार्डरोब लेके आए, पूरा वार्डरोब डाल दिया। सो नाउ दैट इज अ काइंड ऑफ प्लगइन। मीन्स यू विल ट्राई, सबसे पहले तो आपका स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए, किस तरह की वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपको थीम के तौर पे लेना है। ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, स्कूल की वेबसाइट के लिए, योगा की वेबसाइट के लिए, इमेज गैलरी की वेबसाइट के लिए, फोटो गैलरी की वेबसाइट के लिए, या ब्लॉगिंग करने के लिए, या लाइक कम्युनिटी बिल्डिंग करने के लिए, या सोशल मीडिया की वेबसाइट स्टार्ट करनी है, या what is the reason, why your website exists. According to that you will select your theme, and once you have selected the theme, majority of the feature will be available to you for editing. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने जो थीम सेलेक्ट कर लिया, थीम के साथ आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप कुछ और चीज उसमें ऐड करना चाहते हो। आप गूगल एनालिटिक्स उसमें ऐड करना चाहते हो, आप उसमें लाइव चैट ऐड करना चाहते हो, आप उसमें एक स्लाइडर ऑप्शन नहीं था, स्लाइडर ऑप्शन ऐड करना चाहते हो, आप उसमें लाइक जैसे ही कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करे और वो सोशल मीडिया पे शेयरेबल हो, ऐसा कुछ फीचर सेलेक्ट करना चाहते हो। सो वेबसाइट में जो भी फीचर्स आप सेलेक्ट करना चाहते हो और वो फीचर्स आपके थीम में इनबिल्ट नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लगइन। प्लगइन इज द थर्ड पार्टी, समवन हैज क्रिएटेड दैट कोड फॉर यू। आपने उसने एक सेक्शन ऑफ कोड, एक ब्लॉक ऑफ कोड बना के रखा हुआ है, आप उस ब्लॉक ऑफ कोड को ऐड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, तो वो फीचर का इनपुट दे करके आप अपनी वेबसाइट में वो फीचर एक्टिवेट कर सकते हैं। So that is the beauty of WordPress. You can say that this is the plus point as well as major disadvantage. Advantage is that कि आप कोडिंग किसी और ने की हुई है, केवल आपको प्लग एंड प्ले करना है। आपको अपना थीम प्लगइन सेलेक्ट करना है, प्लगइन को इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करने हैं, डेटा इनपुट करना है, वो फीचर्स एक्टिवेट हो गए आपकी वेबसाइट। दैट इज अ फैंटास्टिक थिंग फॉर अ नॉन टेक्निकल पीपल, फॉर ऑफ द पर्सन हु डोंट नो कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, राइट? बट इन द सेम टाइम, बिकॉज ये प्लगइन ओपन सोर्स है, किसी और ने क्रिएट किया है, एंड यू डोंट हैव दैट इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड दैट कि कोडिंग में एक्चुअली किस तरह की कोडिंग उसने करी है।
कहीं उसने कोई मिलीशियस कोडिंग तो नहीं कर दी है, कहीं आपके डेटा को वो मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, कहीं आपकी वेबसाइट पे वो सेल्फ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर सकता है, बिकॉज प्लगइन्स जो है वो आपने नहीं, किसी और ने क्रिएट किया है. तो दिस इज द वन ऑफ द रीजन सब बिग कंपनीज डोंट प्रेफर वर्डप्रेस ड्यू टू दिस सिक्योरिटी. दिस इज वन ऑफ द सिक्योरिटी एस्पेक्ट कि आप जब आप किसी थर्ड पार्टी का प्लगइन यूज कर रहे हो, थर्ड पार्टी का थीम यूज कर रहे हो, तो आप कोडिंग आपके हाथ में नहीं है, किसी और ने करी है. तो नॉन टेक्निकल पीपल के लिए जो एडवांटेज है वो किसी और के लिए डिसएडवांटेज भी हो सकती है. तो उस केस में लोग क्या करते हैं, पीएचपी डेवलपर हायर करते हैं और अपनी थीम खुद डेवलप कराते हैं, अपनी प्लगइन खुद डेवलप कराते हैं, ताकि उसमें सिक्योरिटी ब्रीच के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाए. So plugin is the kind of pre-defined coding which you can just plug and play in your website to add any feature. I would say जितने features WordPress में plugins के through available हैं, उतने features आज की डेट में किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं अवेलेबल है. मतलब बिना कोडिंग के उतने सारे फीचर को ऐड करने का ऑप्शन और किसी में भी नहीं, चाहे आप कोई भी उठा लो, वेब, विक्स, गूगल की वेबसाइट, गूगल से वेबसाइट क्रिएट करते हैं, गोडैडी से वेबसाइट क्रिएट करते हैं. देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिशन, सो मेनी ऑप्शंस आर देयर. लेकिन दिस प्लगइन फीचर, दिस थीम फीचर इज फैंटास्टिक फॉर द वर्डप्रेस. उतने वेराइटीज, उतने ऑप्शंस किसी और प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है. So this is one of the reason we use, but these are the paid feature. Plugin के लिए आपके पास self hosted website होनी चाहिए. SEO tools आप also a plugin kind, it's a kind of plugin, तो उसके लिए आपके पास self hosted website होनी चाहिए. Store तो free और self में आपको दोनों में मिल जाता है. Custom के लिए again आपको domain hosting के लिए pay करना पड़ेगा. Ad free आपकी WordPress की website बहुत popular हो जाएगी, तो हो सकता है WordPress आपकी website पे ad चलाने लग जाए. तो वर्डप्रेस इज सेइंग कि आप अगर सेल्फ होस्टेड में जाते हो तो हम ऐड नहीं चलाएंगे. सो इमेज स्टोरेज, जैसा अभी मैंने बताया कि फ्री वाले में 3 GB का स्टोरेज आपको मिलता है, आपको और ज्यादा स्टोरेज मिल सकते हैं, वीडियोस के स्टोरेज ज्यादा मिल सकते हैं. वर्डप्रेस आपको टेक्निकल सपोर्ट भी दे सकता है. तो ऑल दीज आर द फ्री ऑप्शन, राइट, विच आई एम स्किपिंग फॉर नाउ. Sorry, all these are the paid option which I am skipping for now. So here again WordPress is asking you to go for any plan. So right now I am not, these are the features, you can say that आपको ये सारे फीचर आपकी वेबसाइट में होने चाहिए. आप अगर सेल्फ होस्टेड में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी. आपको एक डोमेन चाहिए होगा, आपको ईमेल और बेसिक चैट सपोर्ट, मतलब सेटअप करने के लिए चैट सपोर्ट मिल रहा है, प्रायोरिटी सपोर्ट मिल रहा है, प्री इंस्टॉल SSL, because SSL, how many of you have heard about SSL? What is SSL? Any idea? SSL? No. SSL is secure socket layer. So have you seen the website HTTP or HTTPS? बहुत सारी वेबसाइट HTTP होती है और बहुत सारी HTTPS होती है. Have you noticed that? हाँ. हाँ. So जो भी वेबसाइट HTTPS है वहां पे SSL सिक्योरिटी लगा हुआ है. So SSL security is extra layer of security. What is extra layer of security? कि whenever data get transferred from one device to another device, the data will get encrypted. मीन्स आपकी वेबसाइट पे आकर के किसी ने अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर, या आप ई कॉमर्स की वेबसाइट है, लोग प्रोडक्ट बाय करेंगे आपकी वेबसाइट से, तो आपकी वेबसाइट पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बिलिंग इन्फॉर्मेशन और सिंपली कॉन्टैक्टर्स का फॉर्म भरा, तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं. सो यू कैन से दैट कि उनका लैपटॉप डेस्कटॉप सिक्योर है, आपका सर्वर सिक्योर है. what is the security issues when data get started from transmitting from their local system, their laptop to your server? क्योंकि वो डेटा तो आपके सर्वर पे आगे सेव होगा. तो उस ट्रांजिशन पीरियड में अगर उस डेटा को कोई हैक करना चाहे और उसको डेटा को यूज करना चाहे तो कर सकता है. अगर SSL है तो नहीं कर सकता है. दैट इज द एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी. दैट्स व्हाई ई कॉमर्स के केस में इट इज वन ऑफ द कंपलसरी कि आपका SSL सिक्योर होना ही चाहिए, मींस HTTPS होना ही चाहिए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एज सो मेनी अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, एंड बिलीव इट और नॉट, गैंग ऑफ पीपल आर देयर हु इज trying to capture the data during this transmission period.
मतलब पाकिस्तान से के सर्वर से डेटा इंडिया आ रहा है, उसके बीच में वो दे वांट टू इंटरसेप्ट इट एंड दे वांट टू कैप्चर दैट डेटा। तो SSL सिक्योरिटी इज वन ऑफ द एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। तो गूगल ने अब बोल दिया है कि जिसकी जिसकी वेबसाइट HTTPS होगी हम उसको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस देंगे, उनकी रैंकिंग हम बेटर देंगे in comparison to the website which does not have SSL security. So after once the Google has said that, now everyone is talking about कि मुझे HTTPS चाहिए। So HTTPS के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, SSL सिक्योरिटी सर्टिफिकेट बाय करना होता है। अगर आपने बाय कर लिया और फिर वो हर साल उसको रिन्यू कराना होता है, आप अगर नहीं रिन्यू कराएंगे तो फिर वो वार्निंग आने लग जाती है। हैव यू नोटिस, यू मस्ट हैव नोटिस दैट कि कोई कोई वेबसाइट खोलो तो वहां पे वार्निंग आती है, दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर और विजिट दिस वेबसाइट एट योर ओन रिस्क। सो वो कुछ नहीं है, वो ब्राउजर जो है वो ये डिटेक्ट कर पा रहा है कि इसका सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो चुका है, रिन्यू नहीं हुआ है, तो इन दैट केस वो दे गिव यू द वार्निंग। तो SSL सर्टिफिकेट आपको फ्री में दे रहा है। जेट पैक एसेंशियल वो स्पैम को डिटेक्ट करने के लिए स्पैम कमेंट्स आते हैं, या लॉगिन को 3 लॉगिन्स के बाद आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए, कोई लॉगिन अटेम्प्ट ना कर पाए, ये सारे एक फीचर्स हैं। स्टोरेज आपको इसके अकॉर्डिंग मिलेगा। स्टोरेज इज दिस सर्वर, जब आप बाय करते हो तो कितना स्टोरेज आपको मिलता है। थीम्स आपको डजन ऑफ थीम्स, थीम कैन बी पेड और फ्री। जब आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो आपको हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फ्री थीम भी अवेलेबल है एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेड थीम भी अवेलेबल है। तो वर्डप्रेस इज गिविंग यू कि आप अगर वर्डप्रेस पे फ्री पेड अकाउंट लेते हैं तो आपको बहुत सारे फ्री डिजाइन भी मिलेंगे जो इन जनरल पेड अवेलेबल हैं। आप wordpress.com का ऐड हटा सकते हैं, प्रीमियम थीम यूज कर सकते हैं, डिजाइन को कस्टमाइज कर सकते हैं, पर्सनलाइज हेल्प डाल सकते हैं, प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, थीम अपलोड कर सकते हैं। सो वर्डप्रेस की ब्रांडिंग, जो आप कोई भी फ्री वाली वेबसाइट डालेंगे तो नीचे में पावर्ड बाय वर्डप्रेस का आता है ऑप्शन, तो वो powered by WordPress ऑप्शन को आप हटा सकते हैं। So these are the things which you, if you are going for the paid plan, so you can have these features available. So right now we are going for the free plan, that is $0. So either you can select from here or you can select from so free option we want to go for, so we will select from here. So congrats, your website is done. So as I said that कि जो पब्लिक को दिखाना है वो कौन सी वेबसाइट है, वो वेबसाइट है आपकी digitalseekers.wordpress.com। दिस इज वर्डप्रेस digitalseekers.wordpress.com। तो हमने डिफरेंट थीम ली थी तो हमारा लुक एंड फील डिफरेंट है, और केतन ने डिफरेंट थीम ली थी तो उनका लुक एंड फील डिफरेंट है। नाउ वी हैव टू कस्टमाइज इट। अब इसको, ये तो पब्लिक के लिए दिख रही है, ब्लैक वाली स्ट्रिप आ रही है बिकॉज यू आर लॉग्ड इन। अगर आप लॉग इन नहीं होगे तो ये ब्लैक वाली स्ट्रिप नहीं आएगी। whoever will not verify your email ID, उनका भी कंटेंट पब्लिश नहीं होगा। तो आपको लॉग इन होना है पहली चीज, और ईमेल को वेरीफाई कर लेना है दूसरी चीज, right? If you want to do any editing, I want to change the color or text or button, I want to do all the changes, whatever changes I want to do here, I want to do changes, then you have to go to the /wp-admin। तो आपको अपनी वेबसाइट के आगे में क्या लगाना है, /wp-admin to do any changes, to do any changes inside the website is, आपको ऐड क्या करना है, डैश जो भी आपका wordpress.com/wp-admin। अगर वो डिजिटल सीकर्स भी होता, फॉर एग्जाम्पल केतन की कौन सी वेबसाइट है, मुसाफिर वर्क्स, मुसाफिर, नो व्हाट द ऑलरेडी डन क्रिएटेड वेबसाइट, ओ अच्छा, kvcom.in, kvcom.in। So even if this is the website in WordPress, it might be you can log in using wp-admin, wp-admin। if अगर admin पेज का URL नहीं चेंज हुआ है, अगर एडमिन पेज का URL, यू हैव द ऑप्शन कि जो लॉगिन पेज है उसका URL ही चेंज कर दे, ये भी तो एक पेज है ना wp-admin। सो wp-admin भी एक पेज है। सो इफ यू कैन चेंज द लॉगिन पेज एड्रेस,
तो उस केस में नो वन कैन गेस दैट कि किस पेज से इस वेबसाइट पे लॉगिन करना है, बिकॉज अभी हो रहा है क्या? so we will try, I will try to open. So yes, here it, so now I know that the WP admin page accessible hai. So I have to try different permutation combination. So this is one of the security issue. Whoever has created, you can ask them to change the login address. Oh, okay. So no one can no, at least जो ताले तक कोई पहुंच ही नहीं सकता है. यहाँ पे क्या है, ताला सबके लिए एक्सेसिबल हो गया. अब चाबी उनको नहीं पता है, लेकिन चाबी वो ट्राई कर सकते हैं. बट ये मतलब वर्डप्रेस वाली साइट ही है? ये वर्डप्रेस की ही वेबसाइट है, क्योंकि मैंने डोमेन खरीदा था और ये खरीदा था, क्या कहते हैं उसे, डोमेन और होस्ट, और ये दोनों खरीद के मैंने अपने फ्रेंड को बोला था करने. हाँ, तो उन्होंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया है, जिसपे आपको अगर उसका यूजर आईडी पासवर्ड होगा, आप यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके इसके WP एडमिन में लॉगिन करते होंगे. राइट. तो उसी तरह जैसे आप यहाँ पे अभी आपने कौन सी एक बनाई थी वेबसाइट? musafirwalks.wordpress.com. मुसाफिर स्पेलिंग मुसाफिर MUSAFIR, बस. हाँ, walks, हाँ, .wordpress.com. Right. So now I can see the website. If you have done the it's coming soon because you haven't published it. Right. अभी तो publish नहीं किया, इसलिए यहाँ पे मेरे पास वो theme नहीं दिख रहा है. Otherwise, if I have to do any editing, then I require to enter WP-admin. Right. If I will try to edit, then they will ask me कि मैंने जो जिस WordPress account से login किया हुआ उसमें ये 4 वेबसाइट तो दिख रही हैं, लेकिन ये वेबसाइट musafir.walks नहीं है. Right. तो I have to request you to the access. I can request you the access, or you can give me इस Gmail ID पे आप मुझे access दे सकते हैं अपनी वेबसाइट का. तो इस वेबसाइट में वहां पे भी लिस्ट आने लगेगी, तो I can go and see the dashboard. Right. So ideally जब आपको यूजर आईडी का पासवर्ड होगा, यूजर आईडी पासवर्ड WP एडमिन का यूजर आईडी पासवर्ड होने के बाद ही कोई आपकी वेबसाइट में चेंजेस कर सकता है. राइट. तो जो भी आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट के आगे हम क्या डालेंगे? WP-admin. WP-admin. All right. So here you can go to the visit dashboard. So this is the dashboard which all of you should be able to reach to this dashboard. इस डैशबोर्ड तक पहुंच गए, इसका मतलब है अभी तक का जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा वो आपने सक्सेसफुली कर लिया, सही से कर लिया. This is the dashboard where you have to spend all your time to manage your website. So here you have to manage entire blog की category, blog का tagging, नया blog add करना, blog post को manage करना. This is the blogging part. Here you are going to manage your media, images, videos, graphics, PPTs, PDF, ebooks. All your media library will be managed here. All your link will be managed here. All your pages. So page and post is very similar thing. But the difference is page is more static kind of nature, like about us, contact us, privacy policies. So these are called, for that kind of content we create page. But how to learn digital marketing, how best best skill you must have in 2021 as a digital marketer. So जितने इस तरह के जो इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं वो पोस्ट में जाते हैं, और जो फिक्स इंफॉर्मेशन है जो आप डेली चेंज नहीं कर रहे हैं, जिसपे आपको डेली अपडेट करने की जरूरत नहीं है, उस तरह के कंटेंट के लिए हम पेज बनाते हैं. तो जब आप पेज बना रहे हो या पोस्ट बना रहे हो, लुक एंड फील आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मिलता है. हियर यू कैन मैनेज योर कमेंट. जितने भी आपकी वेबसाइट पे या ब्लॉग पे या पोस्ट पे कमेंट लोग करते हैं, उनको कमेंट को मॉडरेट करना, उनको डिलीट करना, उनको स्पैम मार्क करना, उनको अप्रूव करना, ये कमेंट सेक्शन से मैनेज करते हैं. फीडबैक का यू कैन मैनेज, जो भी टेस्टिमोनियल्स है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो. वेबसाइट का जितना कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया मीन्स वो पोर्शन वेबसाइट का जो हर एक पेज पे अपीयर हो रहा है, हेडर में, फुटर में, साइड बार में, लेफ्ट, आपका मेन्यू ऑप्शन है, मेन्यू हर पेज पे आता है या एक पेज पे आता है? हर पेज पे आता है ना? हर पेज पे आता है, तो वो अपीयरेंस से मैनेज होगा. Whenever you are doing anything, whenever you want to do any changes on your website, you have to ask कि जो changes है मुझे एक किसी particular पेज पे करना है या हर एक पेज पे करना है. अगर हर एक पेज पे करना है तो you have to manage that change through the appearance.
आप कस्टमाइज करेंगे, पूरी वेबसाइट को कस्टमाइज कर रहे हैं, विगेट्स डाल रहे हैं, पूरी वेबसाइट के हेडर फुटर साइड बार के लिए मैनेज कर रहे हैं, मेन्यूज पूरी वेबसाइट को मैनेज कर रहे हैं, एएमपी एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज, वेबसाइट का मोबाइल वर्जन बना रहे हैं, मोबाइल का व्यू पॉइंट यूआरएल चेंज ना हो, तभी भी मोबाइल सेम ही यूआरएल मोबाइल पे भी खुल रहा हो, डेस्कटॉप पे भी खुल रहा हो, तो दैट इज द मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। तो दिस इज फॉर द इंटायर वेबसाइट। ये जो थीम आप चेंज करेंगे तो पूरी पूरी वेबसाइट की थीम चेंज हो जाएगी। So this appearance section, whenever you are doing any changes, let's suppose आप अपनी वेबसाइट में जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे let's suppose यहाँ कॉन्टैक्टर्स के अलावा एक और बटन डालना है, बुक अपॉइंटमेंट। So will it be with a part of one page or will it part of every page? Ideally one page, One right? page, so For home page, landing yes, page, home page. yes, landing page, home page पे है. So there this kind of changes you have to do through the pages. So you have to go to the page and you have to find the particular page, जो home page या जो भी page आपने as a home decide किया हुआ है, उस page को जाके edit करेंगे और वहां पे button add करेंगे. Right, so you can do any changes on any particular page. Let's suppose I want to add one social media links here, somewhere I want to add Facebook, Twitter, LinkedIn, या header में या कहीं footer में already added है. अब यहाँ पे मुझे YouTube का link भी add करना है. YouTube is not there, so YouTube का link भी add करना है. Will this a part of one page or every page? Actually every page if you scroll down. Yes, so it's the part of every page. Doesn't matter scroll down or not. कोई भी पेज होगा उसके फुटर में यही होने वाला है. राइट, सो अगर आपको इसमें चेंजेस करने हैं, इसमें से आपको ट्विटर को हटाना है, यूट्यूब को ऐड करना है या कुछ भी और नया पोर्शन ऐड करना है, सो दिस सेक्शन विल बी मैनेज्ड बाय व्हिच सेक्शन? ये जो पोर्शन है उसको कहां से मैनेज करना होगा आपको? अपीयरेंस, राइट? अपीयरेंस के अंदर विगेट से वो मैनेज होगा. अपीयरेंस के अंदर कहां से मैनेज होगा, that we will discuss later, but right now let's understand this कि if when you are doing any changes under the page section or post section, you are working on the area of a particular page. आप केवल इस एरिया में काम कर रहे हैं. ये मुझे यहाँ पे फील्ड में एक और ईमेल आईडी वर्डप्रेस के अलावा मुझे कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड करना है, मुझे एक और फील्ड बढ़ानी है, कॉन्टैक्ट नंबर. किस पेज पे काम करना होगा? Appearance. Here you have to add one more field. I want to add one more field here, contact number. Dashboard. Yes, we have to go and open that page section and look for contact us page, and there I have to do the changes. Right? Okay. If you are doing any changes in the service section, let's suppose मुझे ये image change करनी है या image में एक और bubble डालना है. So this is the part of service page. So I will go to the service section and do the changes in the service page. So I mean to say that कि जो कुछ भी कॉमन है, ये मेन्यू कॉमन है, हर पेज पे होम पेज पे आ रहा है, हर पेज पे ये मेन्यूज आ रहा है, डजंट मैटर किस पेज पे चले जाओ, ये मेन्यू कॉमन ही रहने वाला है. तो ये मेन्यू कहां से मैनेज होगा? अपीयरेंस के अंदर मेन्यू से. राइट, आप ये फुटर में चले आओ, फुटर में फुटर का मेन्यू है, ये फुटर का मेन्यू है, कहां से मैनेज होगा? अपीयरेंस के अंदर विगेट से. ये फुटर का सोशल मीडिया लिंक है, फुटर में सोशल मीडिया मेन्यू आप इसको कह सकते हैं, फुटर का सोशल मीडिया मेन्यू है. फुटर कहां से मैनेज होगा? अपीयरेंस के अंदर विगेट से. मींस आई मीन टू से दैट कि अगर आप जाकर के होम पे चेंज करोगे, वो केवल होम पे चेंज करेगा. अगर ब्लॉग पे चेंज करोगे तो केवल ब्लॉग पेज पे चेंज करेगा. कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाके चेंज करोगे, केवल कॉन्टैक्ट अस पेज का कंटेंट चेंज होगा. सर्विस पेज पे जाके चेंज करोगे, केवल सर्विस पेज का कंटेंट चेंज होगा. मतलब उसके हेड आप किसी पर्टिकुलर पेज पे या पोस्ट पे काम कर रहे हो, इफ यू आर वर्किंग ऑन एनी पेज और पोस्ट, दिस विल नॉट डू एनी चेंजेस इन योर कॉमन एरिया. अगर मैंने यहाँ मेन्यू के चेंजेस करने हैं तो अपीयरेंस पे जाना है. हाँ, और कोई भी एक पेज पे कुछ चेंजेस करने हैं तो कहाँ जाना है? या तो पेज पे या तो पोस्ट पे, डिपेंडिंग. अगर वो ब्लॉग का सेक्शन है तो ब्लॉग पोस्ट पे जाएंगे, और फिक्स इन्फॉर्मेशन है तो पेज पे जाएंगे. So let me show you how to create page and post, then it will be more clear. So but you understand that a website have a few common area and few content area. Common area
मीन्स ये लोगो कॉमन एरिया का पार्ट है, ये मेन्यू कॉमन एरिया का पार्ट है, ये सर्च ऑप्शन कॉमन एरिया का पार्ट है, ये जो फुटर में अपीयर हो रहे हैं वो कॉमन एरिया का पार्ट है, ये फुटर मेन्यू कॉमन एरिया का पार्ट है, ये सोशल मीडिया मेन्यू कॉमन एरिया के पार्ट है। लेकिन इसके बीच में जो कुछ भी है वो हर पेज पे चेंज हो जाएगा। ओके, मतलब आपका ही एग्जांपल यूज करके घर में हम्म आने के बाद हम्म हर रूम में ट्यूबलाइट है और फैन है, हम्म तो वो कॉमन एरिया हुआ। बट किसी काइंड। रूम में कल अलमारी है, किसी रूम में सोफा है, यस किसी रूम में ही टीवी है और किसी रूम में किचन का प्लेटफॉर्म है। यस, दैट इज द कस्टमाइज टू एवरी रूम। हाँ हाँ हाँ, तो वो पेजेस हो गए फिर हाँ अलग अलग। यस यस। एग्जैक्टली सो जो जहां पे आपको पूरी जो कुछ भी आप चेंज कर रहे हो वो पूरी वेबसाइट में रिफ्लेक्ट होना है, तो दैट इज योर कॉमन एरिया। अगर वो जो चेंजेस आप करने जा रहे हो वो किसी पर्टिकुलर पेज पे रिफ्लेक्ट होना है, दैट इज द पार्ट ऑफ कंटेंट एरिया। ओके, So गॉट इट। why I'm emphasizing this, कि just understand, if I will make you learn how to manage the common area or how to manage the content area, are you able to manage the entire website? अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये लोगो कहाँ से मैनेज होता है, ये मेन्यू कहाँ से मैनेज होता है, इस मेन्यू में और ऑप्शंस कैसे डाल सकते हैं, फुटर कैसे मैनेज कर सकते हैं, फुटर में एक और मेन्यू कैसे डाल सकते हैं, या मेन्यू को चेंज कैसे कर सकते हैं, ये सोशल मीडिया का मेन्यू कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर मैंने फुटर एरिया को कैसे मैनेज करना है ये बता दिया, मैंने हेडर एरिया को कैसे मैनेज करना है ये बता दिया, अगर आपकी वेबसाइट में साइड बार होता है तो साइड बार को कैसे मैनेज करना है मैं ये बता दूं, लेफ्ट साइड बार को कैसे मैनेज करना है मैं ये बता दूं, और साथ में हर पेज के कंटेंट को कैसे चेंज करना है मैं ये बता दूं। तो आर यू एबल टू मैनेज द एंटायर वेबसाइट? लगभग, लगभग। विद प्रैक्टिस। Right. So you may require some practice, but this is a two major thing you have to manage: content of every single page and the things which is common to every page. Right. So let's come and create something, then it will be better understandable. So here appearance plugin part जो है वो free में नहीं available होता है, plugin के लिए you have to go for paid option. So सेल्फ होस्टेड वेबसाइट होगी तभी आप प्लगइन यूज कर सकते हैं। प्लगइन आई हैव एक्सप्लेन, इट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड्स व्हिच यू कैन ऐड टू योर वेबसाइट टू ऐड एनी एक्स्ट्रा न्यू फीचर इन योर वेबसाइट। हियर यू कैन मैनेज यूजर्स। सो वर्डप्रेस इज अ मल्टी यूजर वेबसाइट। सो एक ही वर्डप्रेस वेबसाइट को आप डिफरेंट डिफरेंट रोल में बहुत सारे यूजर्स ऐड कर सकते हैं। So here you can see all users and you can invite users and उस यूजर को आप एक रोल दे सकते हैं। सो बाय डिफॉल्ट आपने चूंकि क्रिएट किया है तो आपका रोल तो अभी एडमिन का है। सो इफ यू आर इनवाइटिंग पीपल, you can invite in different role of administrator, editor, author, contributor, followers. So you can invite anyone in the different role according to the role, according to that person role, that the person will get this dashboard. उसको वैसा ही डैशबोर्ड दिखेगा जैसा उसका रोल है। so that your website can be managed by multiple people. आपकी बड़ी सी कंपनी है, आप हर डिपार्टमेंट हेड को आपने एक एक रोल दे दिया है और हर डिपार्टमेंट हेड का काम है कि वो एक ब्लॉग पोस्ट करे अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड। so there you can add every department head as a like as a author or as a contributor, right? So you can manage a single WordPress website can be managed by multiple people. Here tool I share that कि आप अभी सारी मेहनत आप फ्री वाली वेबसाइट पे कर रहे हो, सारा आप पेज पोस्ट कैटेगरी लिंक हेडर फुटर मेन्यू थीम सारा कुछ सारी मेहनत आप फ्री वाली वेबसाइट पे कर रहे हो। फ्री वाली वेबसाइट आपकी फैंटास्टिकली वेल बन गई। नाउ यू डोंट वांट कि ये सारी चीजें मैं दोबारा से जाके आप सेल्फ होस्टेड पे करूँ, क्योंकि सेल्फ होस्टेड का मतलब है कि आपका डोमेन अलग हो गया, होस्टिंग अलग हो गई, आपको सारा का सारा कंटेंट वहां से उठा के ले जाना होगा। तो उसके लिए ऑप्शन क्या होता है, आप टूल्स में जाओगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लोगे, और जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो यू कैन एक्सपोर्ट एवरीथिंग। जो भी आप केवल कंटेंट एक्सपोर्ट करना चाहो तो कंटेंट एक्सपोर्ट कर सकते हो, मीडिया के साथ एक्सपोर्ट करना चाहो मीडिया एक्सपोर्ट सब कुछ कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट करने के बाद आपने जो अपने सेल्फ होस्टेड वेबसाइट में कहीं पे आपने डोमेन होस्टिंग ली है, वहां पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, वहां जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे ये वाली ब्लैक वाली डैशबोर्ड आ जाएगी, उसमें जाकर के आपको टूल्स में इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट करके आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं भी करना चाहते, सीधे वर्डप्रेस का यूजर आईडी पासवर्ड डाल के इंपोर्ट कर सकते हैं। टम्बलर की वेबसाइट को वर्डप्रेस में कन्वर्ट करने के लिए इंपोर्ट कर सकते हैं। स्टोरी लेन की वेबसाइट है उसको आप वर्डप्रेस में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो किसी भी और भी सीएमएस में आपकी वेबसाइट बनी हुई है, ब्लॉगर में ब्लॉग रोल में आपने कहीं पे कैटेगरी ऑर्गेनाइज किया हुआ है, किसी भी लाइव जर्नल में वेबसाइट बनी हुई है, तो उनके कंटेंट को भी आप वर्डप्रेस से इंपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। दिस ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली फॉर द फ्री ऑप्शन, डिलीट का ऑप्शन।
ये सेल्फ होस्टेड में नहीं अवेलेबल होता है, क्योंकि सेल्फ होस्टेड में डिलीट जो होगा वो आपके सर्वर्स पे आपको जाके करना पड़ता है, right? So then you can manage the menu is something आप general settings, reading setting, writing setting, media settings, poll. So these are the settings you are going to do, and इस settings के according आपके पेज पोस्ट कैटेगरी लिंक अवेलेबल होंगे। जिस तरह की सेटिंग आपने ये डेट का सेटिंग डाल दिया ऐसा, तो आप जब भी ब्लॉग पोस्ट करेंगे तो इस फॉर्मेट में डेट डिस्प्ले होगा। आपने टाइम की सेटिंग डाल दी ये, तो जब भी आप टाइम जहां डिस्प्ले करना होगा तो इस फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा, राइट? सो इस तरह की सारी सेटिंग आपने मीडिया में जाकर के थंबनेल का वो आपने थंबनेल का साइज चेंज कर दिया, तो जब भी आप थंबनेल यूज करेंगे तो उस साइज में इमेज अपीयर होगी। मीडियम का आप चेंज कर सकते हैं। सो दिस आर द सेटिंग्स, और इस सेटिंग्स के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट अपीयर होगा। सो यू हैव टू लाइक जो डैशबोर्ड है, इसमें मेजर मेजर जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो पेज पोस्ट कैटेगरी मेन्यू और हेडर फुटर, अब पेज के अंदर, पेज या पोस्ट के अंदर भी आपकी चीजें होती हैं। पेज या पोस्ट के अंदर जो चीजें हो सकती है, पेज के अंदर आप क्या डाल सकते हो? पेज के अंदर हम लिंक डालते हैं, पेज के अंदर हम इमेज डालते हैं, पेज के अंदर हम हेडिंग डालते हैं। मतलब एक पेज को डिजाइन करने के लिए जो जो कंटेंट होता है वो सब पेज के अंदर हम लोग डालते हैं। वीडियो डाल सकते हैं, एक पेज के अंदर हम पैराग्राफ लिख सकते हैं, एक पेज के अंदर हम कुछ भी है, ये सारा एक पेज और पोस्ट का पार्ट होगा। पेज और पोस्ट इज ऑलमोस्ट सेम थिंग, but here I will explain the difference कि पेज the content which you need not to update on the daily basis, जिसके बारे में आपको डेली अपडेट करने की जरूरत नहीं है। post is the content on which you are creating lot of content on the regular basis. तो post is about managing the blog and page is about managing your business. तो बिजनेस में आपका बिजनेस का एड्रेस एवरीडे नहीं अपडेट करना, आपको अबाउट अस एवरीडे नहीं अपडेट करना, टीम्स के बारे में एवरीडे अपडेट हम नहीं करते। इवन इन द प्रोडक्ट अगर हमने फिक्स कर दिया तो प्रोडक्ट भी हमें एवरीडे अपडेट नहीं करना होता है। लेकिन पोस्ट के केस में जितने प्री सेल्स क्वेश्चंस हैं, जितने आफ्टर सेल्स सर्विसेज के क्वेश्चंस हैं, जितने कस्टमर क्वेरीज हैं, जितने एफएक्यूज हैं, वो सारा हम पोस्ट में मैनेज करते हैं। उसका कोई एंड नहीं है। You can just keep posting, keep publishing new content, new content. So that kind of content we manage through the post, and post is primarily to blog, manage your blog. अब ब्लॉग को आप कुछ नाम दूसरा दे सकते हो, रिसोर्स और समथिंग न्यूज, और आप ब्लॉग को नाम कुछ भी दे दो, बट आइडियली यू आर पब्लिशिंग न्यू कंटेंट ऑन द रेगुलर बेसिस। सो ये चीजों को मैनेज करने का प्रैक्टिस आपको करना है, एंड एवरीथिंग विल मैनेज फ्रॉम हियर। So let's start with creating first page. यहाँ पे दो पेज ऑलरेडी बना हुआ है, हम सीधे इसको एडिट भी कर सकते हैं, या नया पेज बनाना चाहें तो नया पेज भी बना सकते हैं। सो राइट नाउ आई एम शोइंग यू हाउ टू क्रिएट अ न्यू पेज, देन वी विल कम बैक एंड सी द एडिटिंग ऑफ दैट पेज एज वेल। सो हियर यू आर क्रिएटिंग द न्यू पेज। Right, so when you are creating a page, you what kind of page you want to create? They are giving you the different templates for the page. अबाउट अस पेज का टेम्पलेट बना हुआ है, ब्लॉग सेक्शन का टेम्पलेट बना हुआ है, कॉन्टैक्ट अस पेज का टेम्पलेट बना हुआ है, मेन्यू आपको मैनेज करना है, पोर्टफोलियो पेज के टेम्पलेट्स बने हुए हैं, सर्विस पेज के लिए टेम्पलेट्स बने हुए हैं, टीम पेज के लिए, होम पेज के लिए। सो ये टेम्पलेट्स बने हुए हैं, आप डायरेक्टली इस तरह के टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हैं या ब्लैंक भी यूज कर सकते हैं। So let's suppose I'm creating a page for home page already बना ही हुआ है, or should I go and show you the blank? I'm going to show you from the blank, but you can edit it. You can choose a particular template and you can edit that as well. So what should you want me to show you first? पहले template से edit करके दिखा दूं या blank से करके दिखा दूं? Blank से maybe. Okay, so let's start with the blank. So here we are selected the page, we are starting with a blank template.
and there this entire process is called block editing. You have to master the block editing. It's a block editing. So why it is block editing? Question from Sanjay is, can we use this template in wordpress.org best website? WordPress, see, if whoever has not heard about wordpress.org, WordPress का दो वेबसाइट होता है, wordpress.com and wordpress.org. wordpress.com where you are creating free website, जैसे digitalseekers.wordpress.com, musafirwalks.wordpress.com. तो जब भी आपको फ्री वेबसाइट बनानी होती है तो हम wordpress.com पे जाते हैं. और जब भी आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, जैसे आपको सर्वर पे अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर चाहिए, वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर इज सिमिलर लाइक जैसे एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर हो गया, फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर हो गया, या टैली का सॉफ्टवेयर हो गया. तो उन सॉफ्टवेयर्स पे काम करने से पहले उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है. उसी तरह आपको अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनानी है तो वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा. लेकिन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए भी एक कॉम्पेटिबिलिटी एनवायरनमेंट चाहिए होता है कि वर्ड टैली सॉफ्टवेयर आप तभी इंस्टॉल कर सकते हो जब आपके पास ये एनवायरनमेंट है, विंडोज 7 होना चाहिए, विंडोज 10 होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट. तो उसी तरह वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर केवल सर्वर एनवायरनमेंट में ही इंस्टॉल कर सकते हैं. अगर आपका जो लोकल सिस्टम है वहां पे वर्डप्रेस इंस्टॉल अगर करना है तो पहले आपको अपना लोकल सिस्टम को सर्वर में कन्वर्ट करना होगा, तब आप उस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं. राइट. सो इन दैट केस वर्डप्रेस org पे हम जा करके उस वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं. So if you want to download the WordPress, if you want to download WordPress software, there you can go to the wordpress.org. तो wordpress.org में हम कुछ करते नहीं है, WordPress सॉफ्टवेयर जस्ट डाउनलोड कर रहे हैं. दैट इज द ओनली गेट वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर. जैसे ही आप गेट वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर करेंगे, आप यहाँ पे वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं. अब डाउनलोड करके यूज कहाँ करना है, उसके लिए आपको सर्वर एनवायरनमेंट होना जरूरी है. सर्वर एनवायरनमेंट कहाँ से हो सकता है, या तो आप अपने लोकल सिस्टम को जैम्प सर्वर में कन्वर्ट करें, देयर इज अ स्टेप्स टू डू दैट, और आप होस्टिंग सर्वर कहीं से बाय करें, गोडैडी से, बिगरॉक से, होस्टगेटर से, कहीं से बाय करें. तो चूंकि वर्डप्रेस अपने आप में इतना पॉपुलर है कि जितने जहां से भी आप सर्वर बाय करेंगे, ये वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर चूंकि फ्री है, तो वो सारे के सारे एज अ वैल्यू एडिशन वन क्लिक इंस्टॉलेशन वहीं पे दे देते हैं. आपको wordpress.org पे आ करके यहाँ डाउनलोड करके और फिर सर्वर पे अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है. इन जनरल कहीं से भी अगर थोड़े भी रेप्यूटेड सर्वर से आप सर्वर प्रोवाइडर से बाय करेंगे, तो वर्डप्रेस का वन क्लिक इंस्टॉलेशन वो सर्वर प्रोवाइडर आपको अपने डैशबोर्ड से ही दे देता है. आपको org पे आके डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. लेकिन जस्ट इन केस आप किसी लोकल डेवलपर से आप बनाते हैं, जिसका अपना डेवलपमेंट कंपनी है, उसने अपना खुद का सर्वर लगाया हुआ है और समथिंग लाइक दैट, तो उस केस में अगर आपके पास वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर नहीं है तो wordpress.org पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं. So here when you are saying we can use this template in wordpress.org, तो wordpress.org से आप केवल सॉफ्टवेयर डाउनलोड, वर्डप्रेस का फ्रेमवर्क डाउनलोड कर रहे हैं, और ये जो टेम्पलेट है दैट इज द पार्ट ऑफ योर थीम इन फैक्ट. तो ये टेम्पलेट्स आपके थीम्स के थ्रू भी अवेलेबल हो सकता है या वर्डप्रेस फ्रेमवर्क के ऑप्शंस में भी अवेलेबल होते हैं. इन जनरल जब हम थीम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ही हम थीम सेलेक्ट कर लेते हैं, वो थीम ही हमें वो डिफरेंट डिजाइन देना शुरू कर देता है. उस थीम के कॉम्पेटेबल वो डिफरेंट डिजाइन हमें देने शुरू कर देते हैं. तो जो आपने थीम सेलेक्ट किया है, चांसेस है कि वो आपको ये टेम्पलेट दे. जो आपने थीम सेलेक्ट किया है, चांसेस है कि वो टेम्पलेट्स आपको ना दे. Right. So you have to check with your theme. So this template is not dependent on wordpress.org or .com. This is the part of WordPress theme. Am I clear, Sanjay? And बहुत सारे लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा जो मैंने अभी बात करी. यस. ओके, नाइस नाइस. सो उस अभी जिनको नहीं समझ में आया उनको समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 99% चांसेस है कि आप जहां से भी डोमेन होस्टिंग लेंगे वही आपको वर्डप्रेस वन क्लिक इंस्टॉलेशन करके दे देगा. अगर आपको 100% श्योरिटी है कि मुझे वर्डप्रेस में ही वेबसाइट बनानी है, देन तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर वर्डप्रेस मैनेज्ड होस्टिंग.
आप बाय ही करो वर्डप्रेस मैनेज्ड होस्टिंग। जैसे आप वर्डप्रेस, जो अभी हम लोग वर्डप्रेस पे प्लान करते समय वर्डप्रेस के प्लान देख रहे थे, वहां से अगर आप बाय करोगे तो आपको इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस मैनेज्ड होस्टिंग सीधे आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ही लैंड करोगे। वो GoDaddy से वर्डप्रेस मैनेज्ड होस्टिंग बाय करो, सीधे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे ही लैंड करोगे। वो सब कुछ इंस्टॉल करके सीधे आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे लैंड करा देगा। तो वर्डप्रेस मैनेज्ड होस्टिंग में जाते हैं। अगर आपको 100% क्लैरिटी है कि मुझे अपनी वेबसाइट केवल और केवल वर्डप्रेस में ही बनानी है, दो इट्स बेटर टू गो फॉर वर्डप्रेस मैनेज्ड होस्टिंग। इन दैट केस आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको वर्डप्रेस मैनेज्ड होस्टिंग देगा वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देगा। आपको केवल यूजर आईडी पासवर्ड बनाना है और सीधे आप एडमिन पैनल, अभी जो ब्लैक वाली एडमिन पैनल थी वहां लैंड कर जाएंगे। राइट, जस्ट इन केस अगर नहीं देता है तो आप wordpress.org से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। Right, so here we are started with the blank template, and blank template हो या कोई template यूज कर रहे हो, हर में आपको ब्लॉक एडिटिंग करनी है। अगर हमने कोई template भी यूज किया होता तो उस template में भी जो sections थे वो एक ब्लॉक था। कौन कौन से ब्लॉक हो सकते हैं? ये सारे, या प्लस साइन पे क्लिक करेंगे वो सारे ब्लॉक्स आपको, मार्क डाउन का ब्लॉक और पैराग्राफ का ब्लॉक और हेडिंग का ब्लॉक और लिस्ट का ब्लॉक और कोटेशन का ब्लॉक और कोड इंसर्ट करने के लिए ब्लॉक और क्लासिक वर्डप्रेस का क्लास। इससे पहला वाला जो इंटरफेस था, वर्डप्रेस ने अभी अपडेट किया है, ये नया इंटरफेस है, एडिटिंग का नया इंटरफेस है। अगर बहुत सारे लोग पुराने वाले वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, उनको पुराने वाले एडिटर पे ही काम करने का, क्लासिक एडिटर पे ही काम करना है, तो वो क्लासिक एडिटर में भी जाके काम कर सकते हैं। सो ऑल दीज आर दी ब्लॉक। टेबल इंसर्ट करना है, स्लाइड शो इंसर्ट करने हैं, गैलरीज इंसर्ट करनी है, इमेज को कंपेयर करने वाला इंसर्ट करना है। ऑल दीज आर द एलिमेंट फॉर योर पेज। अब आपको अपना पेज कैसा डिजाइन करना है, उसके अकॉर्डिंग हम ये एलिमेंट्स यूज कर लेंगे। ऑडियो ऐड करना है, फाइल ऐड करने हैं, मीडिया और टेक्स्ट एक साथ ऐड करना है। समवन वाज आस्किंग दैट डे, आई थिंक संजय, यू आर आस्किंग कि हम मीडिया और टेक्स्ट कैसे साथ में ऐड कर सकते हैं। सो वन साइड यू कैन हैव अ मीडिया, वीडियो और इमेजेस, एंड वन साइड यू कैन हैव अ टेक्स्ट। सो वीडियो इंसर्ट करना है। ऑल दीज आर द डिफरेंट ब्लॉक्स। तो अगर आप कोई टेम्पलेट भी अगर यूज करते, यहाँ पे ब्लैंक के बदले अगर हम लोग टेम्पलेट भी यूज करते, तो उसमें जो जो कुछ भी पे भी क्लिक करते वो कोई ना कोई ब्लॉक होता। तो आप उसको ब्लॉक सेलेक्ट करके ब्लॉक की एडिटिंग कर रहे होते। राइट, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मास्टर दिस ऑल ब्लॉक्स। So what I would suggest, go and do the hit and trial for the all these blocks available. Just try doing, कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगा, कितना भी क्लिक कर दो, कितने को भी डिलीट कर दो, कितने को भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड दिस फ्री वेबसाइट है, एक पैसा भी नहीं लग रहा है। आपको 1 घंटे का टाइम देना है, और इस 1 घंटे के टाइम में आप इस सारे ब्लॉक्स को ट्राई करने की कोशिश करो अपने पेज पे। so that will that way you can master any kind of page design on your website। अभी तो मैं एक पेज बना के दिखा रही हूँ, लेकिन हो सकता है आपको अपनी वेबसाइट में एवरीडे नए पेज डालने हैं, एवरीडे नया पोस्ट डालना है, नए डिजाइन में डालना है। सो देयर यू विल नो दैट कि अपने पेज के किस एलिमेंट को ऐड करने के लिए कौन सा ब्लॉक यूज करना चाहिए। यहाँ पे ब्लॉक ही नहीं, साथ में प्रीव्यू दिखाता है कि आप देखो कोटेशन कैसे ऐड कर सकते हो, लिस्ट कैसे ऐड कर सकते हो, हेडिंग कैसे ऐड कर सकते हैं, मार्कडाउन कैसे ऐड कर सकते हैं, कोडिंग कैसे ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ कैसे ऐड कर सकते हैं, क्लासिक एडिटर प्री फॉर्मेटेड कैसे ऐड कर सकते हैं, वर्सेस कैसे ऐड कर सकते हैं, टेबल्स कैसे ऐड कर सकते हैं, फिर अ काइंड ऑफ पुल कोट कैसे ऐड कर सकते हैं, इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं, स्लाइड शो कैसे ऐड कर सकते हैं। सो ऑल दी आर द एलिमेंट ऑफ योर पेज विच यू वांट टू ऐड, यू कैन ऐड। इज दिस ब्लॉक थिंग इज क्लियर टू यू? So here I'm creating one page, and I'm creating one page related to join the community of digital seeker. Join digital seeker community to learn digital marketing. Do you want to learn digital marketing? Do you want to learn digital marketing? Join digital seeker community. Digital. So let's suppose this is the page heading. This is one of the heading. Here I have to write something. So I can add a block. So here before adding a block, let's suppose I want to add a block related to pull quote. So I'm adding a pull quote. So here digital community quote.
Right. So digital community code. So let's suppose this is the quotation. One more thing here I would like to share कि आपने घर बनाने जा रहे हैं. Like you can, it's very similar to the कि you are building your home. So your material should be ready. आप एक घर बनाने जा रहे हो तो उसके पहले उसका मटेरियल रेडी होना चाहिए. मीन्स आपके पास कंटेंट, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ग्राफिक्स, मेन्यू कैसा होना है, फिटर कैसा होना है, तो आपके पास पेपर पेन पे उसका बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो तो बहुत अच्छी बात है. नहीं क्लियर पिक्चर है, कोई बात नहीं, आप इंस्पिरेशंस वेबसाइट पे जाओ, जो भी वेबसाइट आपको अच्छी लगती है वहां जाओ, वहां पे देखो उनके कौन से फीचर आपको अच्छे लगते हैं, उस फीचर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लॉक्स देखो और उस ब्लॉक्स को ऐड करो. और भी कुछ नहीं समझ में आता है तो जस्ट पेन, जो जितनी वेबसाइट देखते हैं उसके सारे फीचर्स को आप नोट कर लो, उन सारे फीचर्स को कंबाइन करके आप अपनी वेबसाइट बनाने की कोशिश कर सकते हैं. या फिर किसी एक कोई एक वेबसाइट फिक्स कर लो कि मुझे सीखने के पर्पस से द इफ द फास्टेस्ट वे टू लर्न कि मेक दैट इज कि जस्ट कॉपी दैट टिल यू आर नॉट नॉट टिल द जब तक आपको स्किल्स नहीं आता है तब तक क्रिएटिविटी नहीं आएगी. तो क्रिएटिविटी को अभी पहले बाद में छोड़ दो. क्रिएटिविटी, वी विल गेट द क्रिएटिविटी. राइट नाउ जस्ट कॉपी. गो एंड फाइंड अ गुड वेबसाइट एंड ट्राई टू कॉपी दैट वेबसाइट. एक दो तीन चार पांच वेबसाइट कॉपी कर लोगे, पांच छठे वेबसाइट में एक्सपर्ट हो जाओगे, सारी क्रिएटिविटी वहां पे अप्लाई कर पाएंगे. तो स्किल्स डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है गो एंड कॉपी. सो हियर आई एम राइटिंग like who is the, I don't know who has written this. So from Google, I'm just writing from Google. Right. So there one block you have added. So whenever you are adding a block, just give me 1 second. Just give me 1 second.
मैम अगर आप वापस आई हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने म्यूट किया है अपने आप को। Ma'am, please unmute. We are not able to hear your voice. अभी भी नहीं आ रही आवाज हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है? एकदम। Yeah. Okay, so I was not here actually. I have asked you that I will be come back in a few minutes. Oh, okay. Okay, okay. So no worries. Okay. So here I would suggest कि आपका assignment है कि जितने blocks हैं उनको आपको try करना है. So अभी और 2-3 blocks मैं try करके दिखा देती हूँ. So here if you have to add a paragraph, here you can add a paragraph. So I'm just why right now I'm copying from the Google, but you should not be copy. Right, you have your own content, and even if you are copying, please give due credit to the content creator. Right, so I'm without knowing going into the detail कि मैं क्या copy कर रही हूँ. I'm just showing you कि block कैसे edit करते हैं. Right, तो यहाँ पे मैं एक paragraph add कर रही हूँ. So here I have added a paragraph. You can edit whatever paragraph you have selected. All these editing options is available to for that particular paragraph. इस पैराग्राफ की एडिटिंग के ऑप्शन आप इसको सेंट्रलाइज करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, लिंक डालने. लेट्स सपोज आई एम वांट टू गिव अ लिंक हियर. सो जॉइन कम्युनिटी. सो हियर आई कैन गिव अ लिंक हियर. अब ये लिंक में मैं लेट्स सपोज आई एम गिविंग अ वेबसाइट digitalseekers.com मेरी वेबसाइट है. तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करके और यहाँ पे एक लिंक डाल देती हूँ. digitalseeker.com digitalseekers.com. वी आर अज्यूमिंग कि मेरे पास एक वेबसाइट है और मैंने digital seekers.com. So anyone can click here and go to my website. Here I want to make it इसको मुझे चेंज करना है. That you can do. So when you are selecting this block, तो वो इस block के सारे editing option आ जाएंगे. इस ब्लॉक के सारे एडिटिंग ऑप्शन है. आप किसी भी ब्लॉक को नीचे ले जा सकते हो और किसी भी ब्लॉक को फिर ऊपर ले जा सकते हो. जो भी ब्लॉक सेलेक्टेड है आप उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो. सो यू कैन ऐड मोर ब्लॉक्स. लाइक आई वांट टू ऐड अ हेडिंग. सो लेट्स सपोज आई एम एडिंग व्हाई join digital seekers community. राइट. सो ये जो ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि मैंने ग्रामरली इंस्टॉल किया हुआ है. ये जो आप करेक्शन के ऑप्शन आ रहे हैं, ग्रामरली इज वन ऑफ द फैंटास्टिक ब्राउजर एक्सटेंशन. यू कैन डाउनलोड इट एंड यूज इट फ्री ऑफ कॉस्ट इवन. तो ये जो करेक्शन आ रहा है वो ग्रामरली की वजह से आ रहा है. why join digital seekers community, I want it to be the heading of this paragraph. तो मैंने एक पुल कोट कर दिया, हेडिंग यूज कर लिया, फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ भी यूज कर लिया. नाउ आई वांट टू ऐड अ, let's suppose I want to add a image. So here I can add a image, single image. So this is the image, right? So here either you can select the image, you can upload image from your local system, you can select the image from the media library. अगर आपने मीडिया लाइब्रेरी, इफ यू रिमेंबर मैंने डैशबोर्ड में दिखाया था, मीडिया लाइब्रेरी में आपने इमेजेस अपलोड किए हुए हैं तो वहां से भी आप डाल सकते हो. गूगल फोटो से इमेज डाल सकते हो, पिक्सल फ्री से भी इमेजेस ले सकते हो, किसी आपकी वेबसाइट में कहीं ऑलरेडी इमेज अपलोडेड है वहां से, वहां का यूआरएल से उठा सकते हो, फेसबुक का यूआरएल से डाल सकते हो, या फिर अपने लोकल सिस्टम से भी अपलोड कर सकते हो. Let's see if I have any local system image. So this is the image I have used. After that, let's suppose I want to use some video here. So I will go and select one block. So do you, how many of you feel that it's tough, easy, moderate block editing? Tough है, easy है, moderate है, क्या है?
मैं यहाँ एक वीडियो डालना चाह रही हूँ. सो हेयर आई एम एडिंग अ वीडियो. और वीडियो कहाँ से अपलोड कर सकते हैं? अपलोड कर सकते हैं मीडिया लाइब्रेरी से डाल सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं यूआरएल से. तो आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट फ्रॉम द यूट्यूब यूआरएल. सो हेयर आई एम गोइंग ऑन यूट्यूब. सबसे अच्छी बात है कि जब भी आपका वीडियो जो है वो पब्लिक के लिए हो तो बेटर है कि उसको आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल के उसका इम्बेड कोड यूज कर लें, रादर देन अपने सर्वर पे वीडियो अपलोड करने के बजाय. सो वीडियो यूट्यूब के पे वीडियो डालने के फायदा होगा कि यूट्यूब पे के विजिटर्स भी आपको मिलेंगे. यूट्यूब के विजिटर्स भी आपको मिलेंगे. यूट्यूब के वीडियोस गूगल में आते हैं, वहां से भी आपको एक्सपोजर मिलेगा. और वही वीडियो आप अपनी वेबसाइट पे यूज कर रहे हैं तो आप अपनी वेबसाइट का आपको आपका सर्वर स्पेस नहीं यूज होगा. राइट. सो हियर लेट्स सपोज आई वांट टू, let's suppose I'm creating I am using one video, this video. So here I can just copy the URL, this URL here. You can go here and insert from the URL. So this video get embedded. Right, what else you want to add? Let's suppose I want to add, what next? I want to add some list. So let's add some list here. What will you learn at Digital Seekers close group? So here you can learn SEO, you can learn WordPress, you can learn Google Ads, you can learn Google My Business, business you can learn. So this way I have created a list. So I want this is to be the heading of that list. So I want this text should be the heading of the list. So what I will do, I will remove this list and add a heading block. So here I'm selecting a heading block. So this is the heading. Where is the heading? This is the heading. So in heading, I am adding this part. So to make the content more readable, it's very important your content should be readable. So I'm making it up. So now this is the the section. So in this video, even I want to give a heading of this video. So here I'm also adding one heading. So do you know what is digital marketing? So here you can have this heading. Now I can make it up. So to make the content more readable, make the content more readable, you have proper heading. So heading and subheading and in listed format and images. So this way, how do you feel that these things you can try, these blocks you can try? So if you want to add a table, so you can add a table. Let's suppose I want to add a table of 3 by 2. So I can add a table of 3 by 2 something. Here I can write something in tables. I want to add some image collage. So I want to add some image collage. So I can upload some images here. You can add image collage. I'm not sure. I don't have enough images right now. So I'm just using 2 images. So this way you can just, I am not happy with this block. So I can just, what I can do, I am not happy with this image block, image gallery block. So what I will do, I will select this block and remove it, remove the block, right? So that way you can just add, remove any blocks. I would suggest please practice as many blocks as possible. So if you want to add audio, you can add audio. If you want to add a cover image, so as soon as someone is landing here, you want to add a cover image. So you can add a cover image here. So you can have you have to add a cover image. I don't have a good image here. So you can add a cover image.
All right, so right now I'm removing the block. So what do you feel? Can you, how many of you feel that you can practice this part, this block editor? Yes, no, how many are feeling that it's a tough, easy, moderate? So is it tough, easy, moderate? For Sanjay, it's easy, fantastic. What about others? What about others? Okay, how many of you are going to practice it today? Aditi, Bharat, Ketan, easy after practice. Aditi is saying easy after practice. Yes, so I want you to practice it as much as possible. I want you to practice it as much as possible. And tomorrow we will look into the appearance part, and then we will start SEO, that how to manage your header, footer, sidebar, this common area part. Tomorrow we will take care, and then we will start SEO. So can we conclude the session for the day? Sure. Yes, yes. Sanjay is saying yes. And how many of you are going to practice it? How, just share the percentage of confidence that you are going to practice it. What are the chances of chances in percentage that you are going to practice it? 10%, 20%, 30%, 100%. How many are confident that you are going to practice this? At least block editor. Sanjay 100%, Ketan is saying 70%. So yes, it's my wish and blessing that you must practice. Aditi, 90% chances are that practice it. So whatever I will show, that will do my practice. I would suggest, if you want, or whatever you have acquired so far, you have acquired information, you have acquired the knowledge. If you want to make this knowledge your own knowledge, if you want to convert this knowledge into a skill, you have to practice it. No one can practice on your behalf. So doesn't matter, I feel I keep showing you for 100 hours, it will make me practice, it will not make you practice. So I would suggest, please practice. At the assignment is, at least you must have 3 pages ready tomorrow. Come up with the 3 page, minimum 3 pages, minimum 3 pages on your free website. Minimum 3 pages. So are you going to come with the 3 pages tomorrow? At least home, about us, contact us, this kind of pages. Yes, I hope so. You will come up with the you will come with the pages. So today I'm going to end the session. Is that fine? So are we ready to stop the session? Say if we okay to stop the session. Yes. Okay, fine. Thank you so much, Sanjay, Ketan. I really want to thank all Aditi, Bharat, Manisha, Ketan, Sanjay. Thank you so much. Looking forward to see you tomorrow at 3. Nice. Bye. Take care.